Hello and welcome back to another session by Graby on Narratives. Today's session is about the aftermath of the elections 2024 in Pakistan. Independents have won 90 seats, while PML Noon have won 62, PPP have won 50, while MQM won 11, JUI Pakistan have won 2, PML have won 2, and Pashtunkhwa National Awami Party have won 1 seat. This is one report. Surprisingly, Nawaz Sharif already gave his victory speech today. There are news of Nawaz Sharif rejecting the PM-ship offer, and now the establishment are talking to Bilal Bhutto of PPP to take over as Prime Minister. What's going to happen to the independent candidate, we don't know yet. But Parvez Khattak have claimed that most independent candidates will join him, while Bilal Bhutto have also claimed some independent candidate. We don't know the names. There are videos circulating of rigging being done on social media. One official was trying to resist rigging attempts all night and was being threatened by LEA. This news is all over social media in the shape of a video. It's available. Now, my question is, how are the independent PTI candidates going to deal with the government when Imran Khan and most high official body of PTI is in jail? And is this the time Imran Khan is going to appeal to Supreme Court regarding the cases on him? Furqan Bhai? Furqan, I just I'll go directly to Dilshad. Please go ahead. Okay, first of all, there needs some correction in the preamble. Independent candidates won 96 seats, and out of that, 7 seats are already with the political parties. Like in NA 54, they had seat adjustment with PMLN, and the PMLN candidate ran elections like as an independent candidate. He would be joining in PMLN. The total seats for PMLN till now, 24 result of 24 seats is left. 24 seats is left is about 75. Right about now, he has not denied the PM-ship. He's talking to, right about now, there is a meeting going on in Lahore in which Shehbaz Sharif and Mr. Asif Ali Zardari are meeting. Probably what I see and what I foresee is the dependence on independent candidates would be very less, provided if the PMLN join hands with PPP. Because independent candidates are denied of this, the special seats as well. Like there are 233 special seats in Pakistan. Few belongs to the National Assembly and the Provincial Assembly as well. So what I see is single majority can be formed without independent candidates, or maybe 10-20% sway in the total count of independent candidates. First thing. So that is the background. And what I see is there is a big hit because Election Commission of Pakistan before the election has taken the sign away, the sign away from PTI, and that has dented them badly in form of special seats as well. That would be the trick. That was the trick, and that is how the whole construct of elections and the forming of government would be should be considered. So that is the preamble correction in the preamble. So PMLN would form government. Probably they would join in hands with PPP for sure. That is how it is. And in Punjab, they're in very comfortable position to form government themselves. Okay, thank you, Dilshad. I think that's very fair to say that PMLN PPP would join hands and then form a coalition to come into power. But there are a lot of intricacies to be discussed. Who would be the PM? Who would be the president in the coming Senate elections and all? They have to align on certain things, and then there is MQM as well. And if they are forming government in Sindh and also getting something in the federation the PM-ship, they would not agree to that. Do you think कि सिर्फ ये दोनों parties मिलके government बना सकती हैं majority? I don't think so right now. आजाद कहाँ sway करेंगे? I agree to that notion, and मैंने सुना है बहुत से इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, बहुत से लाहौर भी जा रहे हैं, बोलियां लग रही हैं. That is happening. Point of discussion should be KPK, in which about 90 seats are won by independent candidates, and their majority of them are backed by the PTI. They are chartered by PTI. So that would be the real trick in KPK, and rest assured in Punjab and Sindh,
they're in very comfortable position and to form government with like 10-20% sway in the independent candidates. That would happen. And probably before the elections, few of the PTI candidates who just won the election as well, they had some cases as well, like of 9th May and all the rest of it. So they are already in very compromised position. If they want to uh, take the oath as a MNA or MPA for that matter, they would have to face. So I don't think so. Forming a government would be there would be any sort of challenge in the federal and Punjab as well. But the real trick would be in KPK. What would happen? Because you need to join a party before taking oath, and like 90% of them are already independent. Probably they would form their own independent group and name it and get it registered in Election Commission of Pakistan. So something like that would happen. So that is not a challenge I don't see, and probably that is how it is. Like in 2018, we just saw there was an election in which PTI was winning about like 58 seats, and in the end, they were able to get 118 seats for that matter. So, history repeats. And one thing for sure, we haven't. One thing we have learned from history that we haven't learned anything from history. So this is how it is in Pakistan. Like we keep on going in cycles after like 5-10 years, or maybe the cycle has reduced to like 3-4 years for that matter. So I don't see like Mr. Khan is out of the game for the next 3 years. I don't see this a very weak coalition government probably lasting for another 2 years. I don't see it, because there would be a lot of hiccups, because there are a lot of economic challenges as well in Pakistan. And there are a lot of international pressures as well. And as US is going towards the election year in 2024, by end of that, there has an impact of international establishment, international key players in Pakistan, how the internal uh, you know all the internal functioning and the power structure is done in Pakistan. So right about now they're in very comfortable position, but I don't see, because if Bilawal Bhutto Zardari becomes a cabinet member of Nawaz Sharif government, or he or maybe like Shehbaz Sharif's government, so what would be their next elections agenda? Like he would be running for the PM ship in next election. So I don't see, it's a tricky situation. They would have to hold their horses, and maybe majority of the senior leaders won't be taking senior positions as well in coalition government. That is my take on the overall construct of the forming of the government. Okay, That's it. okay, okay. Thank you, Dilshad. I'll straight go towards Marzia. Thank you for joining us. First, a bit of few lines on आप कौन है, introduction थोड़ा दे दे, क्योंकि I know you, like Salman knows you, but and also Gofran, I think so. Like, but you introduce yourself, and welcome to the panel. And then I would like you to have an overview on last night, what happened. इलेक्शंस का डे का, क्योंकि यू कास्टेड योर वोट, और जो आज सिचुएशन हो रही है, तो जस्ट गिव एन ओपनिंग स्टेटमेंट, तो प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है. जी, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम मर्सिया है, मर्सिया रज़ा। मैं इस वक्त हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और उसी के सिलसिले में आजकल पाकिस्तान आई हुई हूँ। सो लकीली आई आल्सो गॉट द चांस टू कास्ट माय वोट यस्टरडे। मैंने जर्मनी से अपना मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की पॉलिटिकल साइंस में। उससे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और बेसिकली मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ। सो आई लिव्ड हियर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड देन आई मूव्ड टू जर्मनी वेयर आई एम करंटली। तो कल जब हम वोट कास्ट करने गए, सो ऑफ कोर्स क्योंकि करंट जो सेंटिमेंट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, सो यू आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट ट्राइंग टू नो व्हाट other people, which party and which candidates the other people are also voting for. तो मुझे भी इस चीज़ का काफ़ी तजस्सुस था कि लोगों से पूछूं, ज़रा पोलिंग स्टेशंस में बात करने की कोशिश करें, ताकि एक जनरल सेंटिमेंट को गेज कर सकें। तो अपने हल्के का जो मेरा पोलिंग स्टेशन है, उसमें मेरे 2 चक्कर लगे थे, क्योंकि सुबह-सुबह सबसे पहले मैं अपना वोट कास्ट करने गई थी, उसके बाद फिर मैं अपनी बहनों को लेकर गई थी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा जो कैंडिडेट है इस हल्के से, गुलशन इकबाल कराची के हल्के से जो हार गया है, उसका नाम आलमगीर खान है, एंड
36 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो इस इलाके में एक बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है। ही इज अ वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर कैंडिडेट इन दिस एरिया। उसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाके हैं वहाँ से इन्होंने प्ले ग्राउंड्स पे और पब्लिक पार्क्स पे से जो कब्जे हुए हुए थे टैंकर्स के और दूसरी माफियाज के, उन कब्जों को खत्म करवा के पिछली गवर्नमेंट में और उनको क्रिकेट ग्राउंड्स में, हॉकी ग्राउंड्स में तब्दील कराया। यानी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ नीपा चौरंगी की तरफ, जिसको इसने एक प्ले ग्राउंड में चेंज करवाया। सो ही इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ। So I was just trying, or and he has also won from this constituency before. तो ये इनकी एक छोटी सी प्रोफाइल है। तो कल जब मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए गई तो वहाँ अंदर थोड़ी सी खवातीन से मेरी बात हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी मेरी बात हुई एक काम के सिलसिले में। तो मुझे ये अंदाजा हुआ, तकरीबन 20-30 अफराद का मैं सेंटिमेंट जो गेज कर पाई, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये पीटीआई के वोटर्स हैं और ये पीटीआई को ही वोट देंगे। उसमें हमारे कुछ मोहल्ले वाले भी मुझे वहाँ पे मिले, तो उनसे तो आप ज़्यादा फ्रैंकली बात कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली आज जब उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जो ऑफिशियल रिजल्ट्स आए, तो आलमगीर खान को यहाँ से सिर्फ इस इलाके से 1100 वोट्स मिले हैं, व्हिच इज़ कंप्लीटली अनबिलीवेबल, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। और 1100 वोट्स आप एक तो ये कि डिस्पाइट बीइंग सो पॉपुलर इन द एरिया उसे 1100 वोट्स मिले, और दूसरी बात ये कि यहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं, जैसे अस्करी 4 का एक इलाका है जो ऑफ कोर्स कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर आता है। उसके साथ एक कुछ स्कूल्स हैं हमारे घर के करीब जहाँ पे कल मेरा जाना हुआ। वहाँ पोलिंग स्टेशंस क्योंकि बने हुए थे, तो वहाँ पोलिंग स्टेशंस के बाहर बहुत रश था लोगों का, एंड दीज़ वर द पीपल हू वर देयर टू कास्ट देयर वोट्स एंड दे कुडन्ट डू दैट बिकॉज़ ऑफ अनकोऑपरेटिव पोलिंग स्टाफ। तो कुछ पोलिंग स्टेशंस में तो पोलिंग ही नहीं हुई है। तो उसके बावजूद इस तरह का रिजल्ट अनाउंस किया गया है जिसमें उनको लूज़र डिक्लेयर कर दिया गया है, व्हिच इज़ जस्ट, आई मीन इट्स एज़ अनबिलीवेबल एज़ सलमान अकरम राजा लूजिंग टू ओन चौधरी। तो सबसे पहला तो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो मुझे यही है कि हमारे इलाके से एक पीटीआई का कैंडिडेट हारा है, जो नहीं हार रहा था, जिसकी कोई पोज़ीशन लूजिंग पोज़ीशन में वो था ही नहीं, ही वाज़ इन अ विनिंग पोज़ीशन। सो आई थिंक अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं इसके लिए। But overall, I think I have the same reading of the election in the rest of the country कि जो जिन सीट्स पे पीटीआई कैंडिडेट्स का हारना बनता ही नहीं था वहाँ पे उनको हरवा दिया गया है। Foremost being the constituency of नवाज शरीफ, so NA 130। अब NA 130 का तो हमारे पास फॉर्म 47 भी आज आ गया है, वो पूरा दिन ट्विटर पे सर्कुलेट करता रहा, फिर रात में शायद इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी शर्म आई तो उन्होंने वो जो फॉर्म है उसको अपनी वेबसाइट से उन्होंने रिमूव कर दिया। बट यू कैन सी, आई मीन द डिस्क्रिपेंसीज आर देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी कि जो टोटल वैलिड वोट्स हैं कास्ट वोट से कहीं ज्यादा हैं। एंड हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? द नंबर्स डोंट ऐड अप। उसके अलावा अभी भी जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली भी पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, और वो आके उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दिया कि दे आर द लीडिंग पार्टी। And I mean, on based on what parameters? Based on which numbers are you making this claim? So it's a very disappointing situation. But I also think at the same time that PTI is going to put up a strong legal fight, and I hope they do that. क्योंकि ये आई मीन ये कुछ डिस्कशन हो रही थी हमारी पहले भी फ्रेंड्स में आपस में कि व्हाट विल हैपन बियॉन्ड दिस इलेक्शन। तो ये तो अंडरस्टूड था कि इसको रिग किया जाएगा, और ये जो है इस वजह से, इसकी वजह से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ द फाइट हैज़ ओनली बिगन हियर। ये खत्म नहीं हुई है अभी, इसके आगे आपको लीगल बैटल्स फाइट करने हैं। हो सकता है सड़कों पे आके प्रोटेस्ट भी करना पड़े अपनी बात मनवाने के लिए। मुख्तलिफ बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आपको लेने पड़ सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त ये है कि इट हैज़ जस्ट, and this is not the point where you get disappointed. Okay, thank you, Marzia. Yeah. And I think that was a very holistic opening statement. I'll go to Sid Siddiqui. ये सियालकोट से आते हैं और उधर एक छोटा सा या बड़ा सा मिसहैप हुआ है, तो आई वुड लाइक सिड टू कमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन सियालकोट। भाई सेठ साहब बताएं कि हो क्या रहा है, लाइक डार एंड जो ख्वाजा साहब हैं, व्हाट्स हैपनिंग?
Unluckily enough, I do not belong to the constituency of Umar Bhai. I belong to the constituency of, I don't even know the name of the person who I voted for, to be honest, some brother of a brigadier who is backed by PTI. Uh, ओवरऑल सियालकोट के अंदर इतना कोई कराची की तरह का मामला नहीं रहा। मैं पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, बहुत ही इजी स्टाफ था। देन अगेन द कंस्टिट्यूएंसी दैट आई एम फ्रॉम, इट्स नॉट अ वेरी हार्श कंस्टिट्यूएंसी। यहाँ पे कोई इतना वो पार्टी के वो वाले लोग नहीं थे खड़े हुए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NA71, however, was a very harsh constituency क्योंकि वहां से खड़ा होता है ख्वाजा आसिफ, के बारे में हमेशा से मशहूर रहा है कि ख्वाजा साहब वकील नहीं करते, जज करते हैं। रात को 3 बजे गालिबन मैंने सोया हूँ, आप लोग ये शो से फारग हो के, तब तक रिहाना साहिबा को वोट की लीड थी गालिबन 50,000। जब मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, एक दो लोगों से कोई कॉल की है तो 80,000 की लीड का मुझे पता चला। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, 3 बज गए हैं, अब तो जो सा वकील वो जज साहब नहीं आ सकते हैं। तो मैं सो गया। फिर मैं उठता हूँ तकरीबन 8-9 के करीब, अपने काम शाम पे जाता हूँ तो जी पता चल जाता है कि जी जज साहब का फैसला आ गया, won. Now I do not know what miracle can happen between 3 in the night and 9 in the morning कि 80,000 लोग एकदम वोट कर दे, but that did. I think we are having some issues with Sid. So I'll go to Salman Bhai. Salman Bhai, if you can give your opening statement, kal aaj uh, statement update, please go ahead. Salman Bhai, you need to unmute करना होगा, आप mute पे हैं. सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, तो मैं तो कल रात को 5 बजे तक मैं जागता रहा, मर्जी सो गई थी। तो 5 बजे तक तो यही सारा इम्प्रेशन था कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बड़ी कन्विंसिंगली लीड में हैं। लेकिन ख़बरें आना शुरू हो गई थी उस वक्त, स्पेशली सिद्दीक जान स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि उन्होंने झड़लू पहनना शुरू कर दिया है और चीज़ें जो चेंज हो रही हैं। सबसे पहले जो खबरें आई थी वो इस्लामाबाद से आई थी। इट वाज शॉकिंग कि इस्लामाबाद, आई डोंट लिव इन इस्लामाबाद बट आई नो वेरी वेल द पॉलिटिकल पल्स ऑफ इस्लामाबाद एंड देयर इज नो वे पीएमएलएन कैन विन अ सिंगल सीट फ्रॉम इस्लामाबाद। फिर कराची में, जैसे मर्जी ने बताया कि कराची में तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीटीआई वेव सिंस 2013 और एमकेएम विदाउट अल्ताफ हुसैन स्टैंड्स नोवेयर। और जिस तरह से एमकेएम को खुली छुट्टी दी गई है, बाकायदा उन्होंने पोलिंग बूथ जाके कैप्चर किए हैं, ये बिल्कुल एक रिपीट था 1990s का, और मुशर्रफ के अंडर जो एमकेएम का राइज था उसका एक रिपीट था जो कि हमने कल कराची में ऑब्जर्व किया है। और कराची के अंदर हम ये देखते हैं कि हमेशा कराची की इलेक्शंस को एक क्वेश्चन मार्क होता है उसके ऊपर, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज कराची बीइंग दी financial backbone of the country don't deserve this kind of treatment from the state, and we always receive such sort of a statement कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर एमकेएम के पास जब मैंडेट था भी तब भी एक क्वेश्चन मार्क रहता था उस ज़माने में। लास्ट टाइम भी पीटीआई के पास मैंडेट था लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने अनड्यू फेवर की पीटीआई को, जैसे कि फैसल वाडा जो है वो कहीं नहीं जीता था। आमिर लियाकत हुसैन की जो विक्ट्री थी बड़ी क्वेश्चनेबल थी लास्ट इलेक्शंस में। इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में 17 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जैसे कि गुलशन इकबाल की जो मर्जी ने भी बात की, ये तो एक ऐसी ब्लेटेंट, मतलब 1 लाख वोट लेने वाले को आपने 1100 वोट पे ले आए हैं कि ये तो ऐसा मजाक है हमारे साथ। मतलब आप क्या समझते हैं, आप किस मुल्क को चला रहे हैं? 24-25 करोड़ के लोग हैं, इनको आपने क्या समझ के रखा हुआ है? और जो लोग ये काम कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या थिंकिंग है उनकी। मतलब ये तो किसी तरह किसी चीज को सर्व ही नहीं करता है, किसी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता है, ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करता है,
ना किसी ये पर्सन को सर्व करता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन को सर्व करता है। तो ये तो एक अटर मैडनेस है जो कि हो रही है। इसको मैडनेस के अलावा, इंसैनिटी के अलावा किसी और तरीके से लेबल किया ही नहीं जा सकता। एंड व्हेन इट कम्स टू comparing with 2018, yes, there were question marks, and there was the issue of RTA system, but there are two theories about this RTA system as well, that this like dysfunctionality of RTS favored whom, because there are also opinions कि RTS जब बैठा था तो उसका जो वो it worked against PTI as well. फॉर एग्जाम्पल ये फेमस पूरा हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेड है, और ख्वाजा आसिफ की खुद की कन्फेशन है कि ख्वाजा आसिफ ने बाजवा को फ़ोन किया उस ज़माने में, और उन्होंने कहा कि डैडी मैं हार रहा हूँ और कुछ करें इसका, तो बाजवा साहब ने उनको एश्योरिटी दी। तो ये बिल्कुल एक स्टॉलवर्ट है PMLN के, उनके अपने खुद के फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ की कन्फेशन मौजूद है कि 2018 में क्या हुआ था। सही बात है कि उस वक्त वो 1 पेज की स्टुपिडिटी जो है वो PTI के ऊपर चढ़ी हुई थी, और उसके उनको फेवरेबल मिले। प्री पोल जो एनवायरनमेंट था उनके लिए बड़ा फेवरेबल था, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं है 2018 का। इस तरह की ब्रेजन रिगिंग के 60 हज़ार की लीड्स को बिल्कुल ओवरनाइट चेंज कर दिया गया। सियालकोट की जो सिद्ध ने बात की है कि सियालकोट में जो हुआ है, ये तो एक ऐसा मजाक है हमारे साथ। इस एज में, इस डिजिटल एज के अंदर आप ये कर रहे हैं कि जहाँ पर मतलब पहले तो एक ट्रेडिशनल मीडिया था, वहाँ पर आपके बैठाए हुए गेट कीपर्स मौजूद थे कि जो कि आराम से इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कंट्रोल कर सकते थे, रेगुलेट कर सकते थे। डिजिटल एज में आप उस तरह की गेट कीपिंग नहीं इंश्योर कर सकते, और ये एक ऐसा उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। Next 3-4 minutes, sir, and I just want to add my 2 cents about the rigging comparison of 2018 and 2024. So first thing, like I do understand like both are not comparable by any means. Like there was a lot of conducive environment that was like that can be taken as pre-poll, and there was a lot done during the poll and after poll, like stoppage of RTS system as well. And sir, with all fairness, like the number of seats PTI was getting was about like 8 to 60, despite of the most popular leader back then, Mia Nawaz Sharif, was in jail along with his daughter as well, and there were some very serious allegations of corruption on all the major leaders of PMLN as well. Then talking about that environment and the 1 page and all the rest of it, that was the overall contour. And out of nowhere, from 60 seats, they were able to get 118 seats in National Assembly, like the general seats. Right about now, when you talk about there are, I do understand, like in Pakistan, like in any country, like the system favors like few candidates here and there, like you were talking about Khwaja Asif in 2018 against Usman Dar for that matter. But wholesome, like PMLN has lost the most, in these elections. The stalwarts of PMLN, naming Rana Sanaullah lost the election, Javed Latif lost the election, Khwaja Saad Rafiq lost the elections, Amir Muqam lost the elections, and there are so many names for that matter. So they're also considered to be very favorite of the system, like likes of Rana Sanaullah, who has maybe had a very PTI had a very horrible time when he was interior minister after ouster of Imran Khan of vote of no confidence. But wholesome, if independent candidates have won about like 96 seats out of 267 general seats, I don't consider like you can blame the overall system, like 5-10%, 5% for that matter, I would consider it. But 2018 overall rigging percentage, and the whole system was favoring one person, from judiciary to military establishment to the media centers, the civil society, and there was a lot of wave of corruption against the opposition leaders, and everybody was sent to jail after the elections, and they were not allowed to run for elections as well. But in this case, I do feel bad for PTI for that matter. For they didn't get their signage of bad for the elections. But despite of that, this is era of social media. Everybody knew who the candidate was, and they have voted. Like I still believe probably majority vote would be with the independent candidates as well in this elections. But
that is the overall contour, and I do feel sorry for PTI for that matter. That is how सर it मैं is. आपको सर आप सुन लें, आप मेरे सुन लें, आप सही है ओके, बस मेरी सुन लें आप। जब भी आप इस तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास। इस तरह से जेनेरिक स्टेटमेंट्स जो है ना वो हम नहीं देते। दूसरी बात, ये जो आपने बात की ना कि 2018 का जो मामला है उसमें पीएमएलएन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमने एक भी लिटिगेशन नहीं देखी फ्रॉम पीएमएलएन कि जिसमें उन्होंने कंटेस्ट किया हो कि ये वाली हमारी जो सीट्स हैं इसमें फॉर्म I got 45 your के point. ये इस तरह के Give me फिगर्स 2 हैं, minutes. और फॉर्म 40 नहीं लेट कंप्लीट ना, अभी आपने बात कर दी ना, देखिए डोंट इंटरजेक्ट। सो तो उसमें ये इस तरह की कोई हमें एग्जांपल उसके अंदर नहीं मिलती हैं, इस तरह की मैसिव, जिस तरह से यहाँ पर पीटीआई का हर कैंडिडेट जो है वो बाकायदा अपने फॉर्म 45 पोस्ट कर रहा है ट्विटर के ऊपर, अपनी तस्वीर लगा रहा है। इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं देखी थी। जहाँ तक बात है कि राना सनाउल्लाह हार गया वो फेवरेबल है, तो जहांगीर तरीन भी डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसको वो भी फेवरेबल था। तो ये इस तरह की अनोमलीज, इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज हर सिस्टम में होती हैं। कोई भी सिस्टम चाहे कितना ही वेल ऑयल क्यों ना हो, वो इतना परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्लानिंग के बावजूद आप उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द लेवल ऑफ टर्न आउट दिस टाइम वाज मैसिव। लाइक कराची, आई कैन वाउच फॉर इट कि जिस तरह से लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हुए थे, जिस तरह से सुबह 8 बजे से लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे, इस तरह का इन्वायरमेंट हमने 2018 में भी नहीं देखा था। 2013 में कराची में ये देखा था हमने, क्योंकि देयर वाज लाइक पॉलिटिकल पल्स जो है वो चेंज हो रही थी उसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर हम कोई कंपैरिजन करना भी चाहेंगे 2018 का और 2024 का, तो इसका 2024 का अगर कोई कंपैरिजन बनता है तो वो 1977 के इलेक्शन से बनता है, कि जिसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है उसके अगेंस्ट पर्जेस हो रही थी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है उसको किडनैप किया जा रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमात इस्लामी के अपने ओपोनेंट को बाकायदा जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की आखिरी तारीख थी उससे पहले उन्होंने किडनैप करवा लिया था और बाद में उनको फिर छोड़ दिया गया था। तो इसका कंपैरिजन, इसके पैरेलल्स जो है वहां से ड्रॉ किया जा सकता है। 2018 का तो मेरे ख्याल में बहुत ही कंपैरेटिवली पोल वाइज, जो एट द डे ऑफ पोलिंग बहुत ही फेयर था। इट एक्चुअली कंफर्म्ड वेरियस सर्वेस एट दैट टाइम। This actually election do not confirm any surveys, do not confirm any exit polls which have been conducted, although there were not many. लेकिन आप देख रहे हैं ना कि कल रिहाना इम्तियाज के साथ जो हुआ है, ये तो एक एग्जांपल है खाली। ये मैसिव I do रिगिंग है understand, वो, sir. कि आप I'm किसी भी sorry. तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। I'll have to leave, sir. I respect your opinion, and I understand. Like, you do have a very fixed bias towards a certain political party, and I respect that. You do have your own political views. But to be honest, if you see, मैं 3 चीजें आपको बता दूं तो सर वेरी क्विकली आपको बता दूं सर, 2018 के इलेक्शन में ना सर, एक पॉलिटिकल बंदे को फ्री रन दिया गया। बाकी सब के ऊपर क्या क्या चार्जेस थे? करप्शन के, तौहीन रसालत के, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के ऊपर थे। और तीसरा क्या था? दे हैव दे आर लाइक नॉट पैट्रियोटिक एंड दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया फॉर दैट मैटर। ये 3 चार्जेस के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं, सारे लीडर्स अंदर हैं, रात को 12-12 बजे तक अदालतें लग रही हैं, और उसके बाद आरटीएस पे बैठ रहे। सर मैं आई डोंट नो, लाइक यू आर इनटू द डीप डाउन इनटू द पॉलिटिकल इलेक्शन सिस्टम एज और नॉट। फुरकान नोज इट। माय मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स हु वर रनिंग 2018 के इलेक्शन, मेरे अपने करीबी दोस्त लड़े हैं, और टिकट्स कैसे मिले हैं, लड़े कैसे हैं, आई डू हैव ईच एंड एवरीथिंग विद मी। अब दूसरी बात कर दूं सर, आज की बात करके मैं एग्जिट करूंगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट सर, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। आज का इलेक्शन सर जो हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये वो सिचुएशन है, और फॉर दैट मैटर ये वो सिचुएशन आप 1977 से कर रहे हैं, तो सर उस तरह का रिजल्ट भी नहीं आया। टर्नआउट की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि टर्नआउट भी उस लेवल का नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, कम्यूट प्रॉब्लम्स रहे हैं। There was no social media at that time. There was no social media at that time. इंटरनेट ही था ना, There सही was no कह रहे हैं private media at that time. सर। कोई आप मुझे सिर्फ लिटिगेशन की भी मैं बात बता दूं सर। लिटिगेशन का पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान में जुडिशरी और पीएम एग्जीक्यूटिव जिंदगी में इमरान खान के दौर के अलावा कभी इकट्ठे एक पेज में नहीं। वो साकिब निसार था जो रात को भी जाके ना हॉस्पिटल्स में भी जाके ना लोगों को जाके फायर भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। आज वो नहीं है। आपने जुडिशियल एक्टिविज्म का पीक देखा, एस्टैब्लिशमेंट के एक्टिविज्म का पीक देखा, और पॉलिटिकल, और आप देख लें कि इसके अलावा मीडिया ट्रायल भी किया गया। आज वो सब कुछ नहीं हुआ। आई डू अंडरस्टैंड, उसके बाद भी इनका निशान नहीं लेना चाहिए था,
चांस मिलना चाहिए था, एक हेल्दी कंपटीशन होता, शायद 96 इंडिपेंडेंट ना होते तो 120 हो जाते पीटीआई के सीट्स. But that is it from my side. Lekin it is very naive to have a comparison comparing this election with 1977 of Bhutto. For that matter, neither Imran Khan is Bhutto, neither Nawaz Sharif is Bhutto. For that matter, I don't like People's Party, but I have huge respect for Zulfikar Ali Bhutto for that matter. Sir, I'm sorry, sir, and thank you for the patient listening. I'll have to leave. I'll join in again if possible. Furqan, thank you, and Dr. Saab, thanks for your opinion and respect that, and keep it up, sir. Thank you very much. थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से आप लोग ने इतना ज्यादा उस पे एम्फसाइज नहीं किया, which is the fact of basically banning the PTI. देखिए पाकिस्तान में एक कोइंसिडेंटली मुझे इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले आई वाज टूरिंग थ्रू फ्रॉम कराची अप until मुल्तान, और उसमें उस टूर के दौरान हम लोगों ने we made several pit stops at very small villages and very small towns of Sindh and as well as southern Punjab. तो वहां पे जब आप इन इलाकों में जाते हैं, आप इन इलाकों में जाकर लोगों से बात करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि बहुत सारे इलिटरेसी का लेवल कितना अबिस्मल है. यानी वहां पर सिंध में तो स्पेशली द पॉवर्टी इज स्टैगरिंग. आई मीन आप इमेजिन नहीं कर सकते. हमें कराची में रह के हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कितना खराब है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, ये वो, विच इज ऑल ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट. एट द सेम टाइम जब आप सिंध में जाते हैं, जब आप सर्दर्न पंजाब के कुछ इलाकों में जाते हैं, तो आपको फील होता है कि ये लिविंग स्टैंडर्ड्स तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं. एंड वी most probably cannot imagine living such a life. तो वहां पर जाकर मुझे लोगों से बात करके अंदाजा हुआ कि वो पढ़ लिख नहीं सकते. तो इस वजह से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव स्टेप है. इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं जब आप किसी भी पार्टी से उसका इलेक्टोरल सिंबल ले लेते हैं. क्योंकि किसी भी हल्के में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोगों को अपने दोनों कैंडिडेट्स का नाम भी पता होगा. अगर नाम नहीं पता होगा तो वो उसे पढ़ना भी जानते होंगे. तो इस वजह से जो पार्टी का सिंबल होता है वो पार्टी की आइडेंटिफिकेशन है. तो अब आप थोड़ा सा इसको इस तरह से इमेजिन करें कि दे कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. एंड in a context like ours where there is so much poverty, where there's so much illiteracy, you cannot imagine a political party to contest an election effectively without their symbol. क्योंकि लोग पार्टी को उसके सिंबल से ही पहचानते हैं. तो जब आपने सिंबल बैन कर दिया, आपने 10,000 किस्म के सिंबल्स हर कैंडिडेट को तकसीम कर दिए, और वो हुआ कब है? वो इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस तरह का एक डिसीजन आता है. तो आपने इफेक्टिवली उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन ही कर दिया ना. उसके बावजूद इतना मैसिव वोटर टर्नआउट आया है. उसके बावजूद बहुत बड़ी सीट्स पर पीटीआई ने एक बहुत इम्प्रेसिव फाइट पुट अप किया है. सो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड टू बी ऑनेस्ट. और अगर कोई इस फैक्ट को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा तो ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है. दूसरी बात ये कि कराची की पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी. तो एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि क्योंकि हम पहले आलमगीर खान के हल्के में बात कर रहे थे यानी 236 पे. तो इससे पहले यहाँ NA 243 जो कि मुल्हका हल्का है हमारे 236 से, यहाँ से इमरान खान जीते थे पिछले इलेक्शन में. तो ये बिल्कुल एक अपर मिडिल क्लास लोकेलिटीज हैं ये दोनों. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस हल्के से पहले इमरान खान जीत चुके हैं वहां पे ये कैसे पॉसिबल है कि आलमगीर खान जो है हु इज ऑलरेडी ही इज अ वेरी पॉपुलर कैंडिडेट इन द एरिया. चले अगर कोई जमात इस्लामी का भी जीत जाता ना तो वो किसी हद तक बिलीवेबल होता. लेकिन यहाँ से जीता कौन है? यहाँ से एमक्यूएम जीती है. एंड यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि ठीक है कराची में एमक्यूएम की सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, बट दिस इज आल्सो एमक्यूएम पाकिस्तान. It's the MQM which does not align or identify with Altaf Hussain anymore. And a lot of the NQM vote comes because of the personality of Altaf Hussain. तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक अल्ताफ हुसैन ने बहुत पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो जो हैं पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको इन्हीं कैंडिडेट्स को वोट डालना चाहिए. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस हद तक कितनी ये फेयर विक्ट्री है. और दूसरी बात ये है कि ओवर द इयर्स कराची के डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं. तो इसमें ये बातें ये कोई आज नहीं हो रही. ये 2018 के इलेक्शन में भी हो रही थी, ये 2013 के इलेक्शन में भी हो रही थी कि कराची में जो स्पेशली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनमें अब अपनी जो
आइडेंटिटी है उसके हवाले से वो कॉन्शियसनेस उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं रही. सो at the time when NQM was rising in the late 70s and early 80s, there was a strong Muhajir sentiment among people of Karachi and Hyderabad, where this party eventually took its root. However, this is no longer the case. तो लोगों के जो इश्यूज हैं वो अब ज्यादा सर्विस डिलीवरी पे वो फोकस्ड हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि हम उर्दू स्पीकिंग है और हमारी इससे सुपीरियर है और उससे सुपीरियर है. सो दिस इज नो लॉन्गर ट्रू फॉर पीपल ऑफ द सिटी. सो उनके बड़े कॉन्क्रीट इश्यूज हैं और इस वजह से वो समझते हैं. हालांकि एक थोड़ी सी डिसएंचांटमेंट भी है यहाँ पे पीटीआई के हवाले से, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्टी which has a very strong organizational structure in the city. At the same time, क्योंकि एथनिक जो एक सेंटिमेंट है वो बहुत कमजोर हो गया है, इसकी वजह से पीटीआई इज कंसिडर्ड आल्सो द ओनली वाइबल ऑल्टरनेटिव. उसके बाद जो सेकंड ऑल्टरनेटिव कंसिडर कराची में वो जमात इस्लामी है. ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कराची से पीपल्स पार्टी को कोई बहुत ज्यादा वोट मिल जाए. मुस्लिम लीग नून कभी सिटी नहीं रहा. और एमक्यूएम का भी ये अब सिटी नहीं है, क्योंकि 2018 में they were split into multiple factions, and then a lot of that vote comes through Altaf Hussain. अल्ताफ हुसैन इस एमक्यूएम पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे. तो it really does not add up. So I think that maybe we should focus more on not just on comparing this election with 2018 or drawing any other comparisons, because I honestly feel that काफी अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था. सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि एक इतनी बड़ी पार्टी को कंप्लीटली डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया. ये 2018 में नहीं हुआ था. उसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से आप ये देखिए कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक पार्टी के साथ ये होता है कि उनसे उनका सिंबल ले लिया जाता है. उसके बावजूद भी दे हैव पुट अप सच अ स्ट्रांग फाइट. और ये वो पार्टी है जिसको एक पर्सनलिस्टिक है, जिसके बारे में तमाम एनालिस्ट ये थे कि इफ यू एलिमिनेट इमरान खान और इफ यू टेक इमरान खान आउट ऑफ द लार्जर पीटीआई इक्वेशन, दिस पार्टी विल क्रम्बल एंड इट विल कोलैप्स. सो ये तो हो चुका है. आई मीन पिछले 7-8 महीनों से लोगों ने इमरान खान की शक्ल भी नहीं देखी. उनकी जो आवाज लोग जलसों में या पीटीआई की रैलीज में सुनते हैं वो एआई जनरेटेड आवाज है. उसके बावजूद भी ये जो पार्टी है ये ऑर्गेनिकली इट हैज मैनेज्ड टू hold its ground. So I think this is something which is completely unprecedented, and this is something which is uh, also a point we should focus more. Yeah, thank you, Marzia. I'll go to Dr. Ghufran. You have been waiting for quite some time. Please go ahead with the opening statement. Kal kya hua? Aaj kya hua? And also, like you have heard two narratives, I would say. One from Salman and Marzia, and also from Dilshad. Different narratives. Kya opinion hai tumhara? Thank you, Dr. Furqan. So, kal tak to the situation was independents are in the lead, everything was going well. और फिर हमारी लास्ट डिस्कशन यही थी कि obviously things are going to change क्योंकि रिजल्ट्स रुक चुके थे. तो I was awake till 5 a.m. Pakistan time, I think, और I was watching this ARY की election transmission. उसमें the last thing that I saw was कि Meher Bukhari gets this call from Chief of Election Commissioner, and वो बताया था कि रिजल्ट्स इस वजह से डिले हो रहे हैं. एक तो ये कि फोन सर्विसेज बंद हुई हुई थी, इंटरनेट इश्यूज, एंड सेकेंडली कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सारे आरओज को सिक्योरिटी के लिए एक साथ लेके आया जा रहा है. तो दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट कंसर्निंग ऑफ अ स्टेटमेंट, कंसिडरिंग के इलेक्शन से पहले काफ़ी बताया गया था कि ईएमएस को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी वो चलेगा. तो देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, जिस तरह मर्जिया ने बात की कि काफ़ी वीडियोस हैं. फॉर्म 47 भी है, इवन दो जो इन्होंने कंसर्न रेज किया था, आई डोंट नो इफ आई एग्री विद दैट, क्योंकि आई थिंक वो एक माइनर सा टाइपो है. लेकिन इट एक्चुअली हैज अ मच बिगर कंसर्न विद दैट फॉर्म 47. वो ये है कि अगर उस पर आप देखें इकबाल अहमद खान, उनके वोट्स हैं 0 इन फॉर्म 47. ये है NA 130 का, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग NA 130 हल्का में देयर इज
पोलिंग स्टेशन नंबर 224, और इसमें इकबाल अहमद खान, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, गॉट 4 वोट्स। फॉर्म 45 पे एक भी वोट अगर आए तो फॉर्म 47 पे 0 वोट्स नहीं हो सकते, दे आर गोइंग टू बी एडेड अप, क्योंकि फॉर्म 47 इज बेसिकली aggregating all the form 45 of the polling station within that हल्का। तो 2 नंबरी हुई तो है। फिर दिलशाद ने बात की कि 2018 में ज़्यादा थी, दैट्स द जिस्ट ऑफ व्हाट आई अंडरस्टूड, कि कंपैरिजन नहीं हो सकता, तब भी काफ़ी हुआ, अब भी काफ़ी हुआ। अभी आई वाज ऑन ट्विटर और एक्स, और इस पे एक थी इफ़त ताहिरा, शी वाज सपोज्ड टू रन अगेंस्ट जहांगीर तरीन, and just a couple days before the election she said that she's not running and she's going to be supporting जहांगीर तरीन। और अभी उनकी वीडियो आई हुई है कि मुझे अगवा कर लिया गया था, मुझे और मेरे भाई को, और तशद्दुद किया गया मेरे भाई पे, मेरी वीडियोस बनाई गई। तो आई रियली डोंट थिंक कि 2018 में इस तरह की चीज़ें हो रही थी। रही बात केसेस वगैरह, देयर हैव बीन लॉट्स मोर केसेस इन दिस, जिस तरह दबाया गया, जिस तरह कोई इजलास वगैरह नहीं करने दिए, कोई इन्हें अपने इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दी गई। तो आई थिंक के कंपैरिजन बनता है। इस बार आप देखेंगे कि एक आध गेयर आगे के लगे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्री पोल रिगिंग। लेकिन फिर बात आती है जो जिक्र आया था कि बल्ले का निशान ले लिया गया था, उसमें द थिंग इज कि आई एग्री कि ठीक है, बल्ले का निशान हफ्ता पहले इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले लेना, इट इज टू एक्सट्रीम ऑफ अ स्टेप, जो कि सुप्रीम कोर्ट को शायद नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पनिशिंग द पार्टी फॉर नॉट होल्डिंग द इलेक्शन प्रॉपरली, यू आर ऑल्सो डिसएनफ्रेंचाइजिंग all the people of the country who were going to vote for PTI। लेकिन इसमें अगर देखें तो बेवकूफ़ी तो पीटीआई की अपनी थी। उन्हें अगर पता है कि हमारे ऊपर सख्ती आई हुई है, कि हमारे लिए हालात ख़राब हैं, हमारे ऊपर फोकस ज़्यादा हो रहा है, कोई भी हम पुट्ठा काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो ज़रा सी एफर्ट करके थोड़ा बेहतर इलेक्शन करने की कोशिश कर लेते हैं। डोंट गिव इलेक्शन कमीशन इवन अ रीज़न कि वो कोई इस तरह की हरकत करते। तो उन्होंने मिसमैनेज किया तो है उस इलेक्शन को। तो अपने अगर इंटर पार्टी इलेक्शन सही कर लेते तो पीटीआई के पास बल्ले का निशान होना था। दे प्रोवाइडेड द एक्सक्यूज दैट द इलेक्शन कमीशन प्रोबेबली वाज लुकिंग फॉर। तो आई वुड एग्री कि इट वाज टू हार्श ऑफ अ पनिशमेंट कि उनका आप निशान ही ले लो, और वो भी दैट क्लोज टू द इलेक्शन। लेकिन पीटीआई एक्चुअली हेल्प्ड इलेक्शन कमीशन इन अचीविंग दैट आउटकम। तो उस पे आई डोंट थिंक आई वुड से कि दिस द फॉल्ट लाइज इंटायरली विद पावर्स दैट बी, इवन दो ठीक है, आई एग्री कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस भी इसी तरह के होते हैं, सवाए जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं। नून लीग का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी 9 पीपल रैन अनअपोज्ड, और कोई उनके वोट्स वगैरह नहीं हुए थे, उन्हें यूनानिमसली उन्होंने जो पोजीशंस थी दे दी थी। लेकिन अगर आपके ऊपर बुरा टाइम आया हुआ है, आपको पता है, आपको आपके ऊपर फोकस हुआ हुआ है, कोई आप जरा से भी दाएं बाएं की हरकत करोगे तो आपको पकड़ के सजा दी जाएगी किसी ना किसी किस्म की। तो दे शुड नॉट हैव टेकन द चांस ऑफ होल्डिंग that kind of intra-party elections. So that would be what I have to say. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा एक कमेंट करना चाहूँगी डॉक्टर गुफ़रान। देखें, वो बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप मातूब हैं या आप अभी ज़ेर ताक़ाइम हैं और यू कैन सी दैट द गोइंग इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू, तो थोड़ा-सा आपको भी एहतियात करनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की केस नहीं होता तो ये कोई और केस होता है, और ये हमने पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी देख लिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर पीटीआई के बैट सिंबल को कॉन्फिस्केट करने के बावजूद भी इमरान खान को पर्सनली किस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया है। और उसकी
जो सबसे डिस्गस्टिंग एग्जांपल है, आई थिंक आई वुड से दैट दैट्स द इद्दत केस। तो वो जो इद्दत का केस है, वो क्या केस है? अगर वो किसी प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में जाए तो वो केस तो एडमिसिबल ही नहीं होना चाहिए, वो केस कोलैप्स कर जाएगा। उसके बावजूद आप देखें कि किस तरह से उसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, किस तरह से तोशाखाना केस में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, यानी जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स हैं 3 दिन पहले तक, वही फिर आगे आके डिफेंस के लॉयर्स बन जाते हैं। डिफेंस के जो लॉयर्स हैं, उनको प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन आपने नहीं करने दिया। तो जब कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तानी स्टेट की एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत कांस्टेंट रही है थ्रू आउट द इयर्स, कि जब इनको किसी भी पार्टी को या किसी भी इंडिविजुअल को डेसिमेट करना होता है, तो उसकी कितनी भी क्रेडिबिलिटी क्यों ना हो, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, दे विल फाइंड वन थिंग और द अदर टू इम्प्लिकेट यू और टू डिस्क्रेडिट यू, और एटलीस्ट दे विल मेक अटेम्प्ट्स टू डू दैट। और यही आपने देखा है कि पिछले पिछले हफ्ते में हुआ, इलेक्शन से चंद दिन पहले उनकी मैरिज को आपने कैंसल कर दिया। एंड आई मीन, ये तो इस पे रिलीजियस स्कॉलर्स तक ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल न सिर्फ ये कि ये कोई गैर आईनी फैसला है, बल्कि ये गैर शरई भी है। क्योंकि इद्दत के मामलात में जो औरत की गवाही होती है, वो हतमी कंसिडर की जाती है। द verdict of the woman is considered final in these matters and you cannot override that। तो उसमें आप देखें, मैंने वो जजमेंट पढ़ा जो इद्दत केस में रिलीज हुआ था, तो वहां पर घर के नौकर की टेस्टिमनी मानी जा रही है। एक एक्स हस्बैंड जो कि आपको नजर आ कि वो उसको नैब ने पकड़ा हुआ था, 1 महीने वो नैब की हिरासत में रहा है, उसके बाद वो आकर अपनी बीवी पर इद्दत का केस कर देता है। तो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये कोई इतना फेयर केस है ही नहीं, और ये एग्ज़ीक्यूट हो रहा है किसी और की मर्ज़ी पे। तो उस हस्बैंड की, जो कि नज़र आ रहा है कि वो विंडिक्टिव है, या अगर कंप्लीटली विंडिक्टिव नहीं भी है, तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर है। उसकी टेस्टिमनी पे आपने कह दिया कि ये जो खातून है, इन्होंने अपनी इद्दत पूरी नहीं की है, or thereby, the marriage stands null and void। So the thing is that if they want to discredit someone, they will always find a way। So I mean, that also does not take away from the fact that political parties in Pakistan have serious issues of organization. They have serious problems with intra-party democracy, but I don't know. I'm not really sure if this is the right time for us to make that kind of a comment। ठीक है, थैंक यू मर्जिया। जी जी गुफरान, यू कैन रिस्पॉन्ड प्लीज। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू रिस्पॉन्ड। मर्जी, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि देखें, इसमें जो इंटर पार्टी वाला केस था, उसे ईसीपी ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 महीने उनका जो जजमेंट थी अबाउट द इंटर पार्टी इलेक्शन, अपनी जजमेंट को रिजर्व रखा था। उन्होंने जजमेंट पेश नहीं की थी, सो दे ब्रॉट इट आउट क्लोज टू द इलेक्शन। उनकी इंटेंशन यही होगी, बिकॉज इलेक्शन कमीशन को भी आइडिया तो है ही कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने शैम किस्म के इलेक्शन कराने हैं, तो उसमें इन्हें आइडिया होगा कि पीटीआई भी इसी तरह की कराएगी, खासतौर पर अगर हम उन्हें 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, और वो भी इन दिसंबर, तो उन्हें आइडिया होगा कि वो इस तरह करेंगे, तो फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। It was I would say, probably a trap set by the powers that be। लेकिन उसमें my point was कि they provided them an opportunity for that trap। जहां तक बात आ गई इद्दत वाली, वो तो सबसे बेकार किस्म का, उससे फजूल कोई केस हो नहीं सकता था। और इट्स सो कंसर्निंग कि मीडिया को परमिशन है नहीं कि आप ट्रायल के बारे में कुछ भी बात करो, बट देर आर रिकॉर्डिंग्स विद इन द कोर्ट जो कि फिर खलाई मखलूक की तरफ से आ जाती है एकदम से ट्विटर पे कि ये देखें इनकी बात ये हो रही थी, वो हो रही थी। जिस तरह आपने बात की कि नौकर की बात सुनी जा रही है, वो इलेक्शन कमीशन का जब ये इंटर पार्टी वाला जो केस था, उसमें भी यही हुआ कि आप एक बंदे को जो कह रहे कि यार मैं इस पार्टी का मेंबर हूं, पार्टी कह रही नहीं हमारा मेंबर नहीं है, बंदा कह रहा नहीं मैं हूं। यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन्स ओपिनियन कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। आप कह रहे हो कि आप पार्टी के मेंबर हो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो आपकी हम बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इफ दैट्स द क्राइटेरिया, तो फिर तो कोई भी बंदा जाके कोई भी बात कर दे कोर्ट में, माननी चाहिए कोर्ट को। अनफेयरनेस हुई भी है, अनफेयरनेस रही है पिछले जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, अनफेयरनेस है।
लेकिन उसमें they could have done a bit better. PTI has made a lot of mistakes जो कि उन्हें realize करनी चाहिए. National Assembly को छोड़ना, ये कल भी बात हो रही थी, they should not have left National Assembly. उन्हें provincial assemblies को भी break नहीं करना चाहिए था. The situation would have been a lot different if they had not taken those steps. But बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि वो नहीं होता तो कुछ और हो जाता, किसी और तरह से उन्होंने कर देना था. So I completely agree with your point. I'm not saying कि इनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, बुरा नहीं हुआ. I agree with that. लेकिन they provided the opportunity. They created that chance कि इनके साथ इस तरह का हो सके. I would like to bring the attention of the panel कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह की बात हो रही थी कि भाई 2018 के इलेक्शन के अंदर पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी establishment and the judiciary and the boots as well as the boys, और जिसकी वजह से एकदम रातों रात जो सी पीटीआई के पास ढेर सारी सीट्स आ गई. That is what is wrong with our electoral system. That was wrong. That is right now wrong. In 71 it was wrong. It was wrong throughout our existence. Before I was born and before you were born. जो एकदम इतने ज्यादा वोटर्स का टर्न आउट हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान के अवाम, मेरी एज के लोग और उनसे जो ज्यादा यंगर जनरेशन है, जो इतने फेड अप हुए हैं, वो we are technically majority of the people are not pro Imran Khan. Majority of the people are done with the establishment. और जो लोगों का ये नोशन है ना कि अगर हम जिस तरह के अमरिया जी ने कहा कि इमरान खान तो है नहीं है लेकिन फिर भी ये सारा कुछ हो रहा है, द रीजन बीइंग लोग इमरान खान ने तो सिर्फ एक क्या है कि एक फ्लड गेट खोला ना कि भाई इनके एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन उस तरह की हो गई. जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो ये है दैट द एस्टैब्लिशमेंट इज टेकिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल अवे फ्रॉम देम. नाउ it's a very agreeable thing to say that the people are incredibly stupid, but they are still the people. The army is still our servant and that is what it is supposed to do. But the reality is that we are the servants of army. That is the problem. The people have become the servants of the establishment when the system is supposed to be that they are supposed to be our servants. We might be making the dumbest of the decisions, and we most likely will make the dumbest of the decisions. But that's Sid, if I may just add one tiny tidbit before I moved to the UK, मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था पाकिस्तान में कि I told them कि this is my last semester, next semester मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, and some of the students they were like कि सर क्यों जा रहे हैं ना, बाहर तो रेसिज्म भी होता है. तो मैंने कहा यार यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. यहाँ पे मैं मेन ऑफिस में जाता हूँ तो कहते हैं आपका बाप क्या करता है, आर्मी में है कि नहीं है, कि आप जिस But Dr. Usman, you have to give a preamble. Like you were working at institute जहाँ पे boots were, you know. Yeah. I was working at an academic institution which is run by the army. लेकिन उसमें बात ये है कि if I'm facing discrimination, इतने छोटे से लेवल पे, इतनी छोटी सी जगह पे. But in all fairness, Dr. Gufran, they were really nice to you. Don't like do that. No, I'm not they were saying, nice to you. I'm not saying that they were all bad. I'm just saying that there is discrimination in Pakistan as well. ठीक है कि you are not first grade citizen even in Pakistan. वो कहते हैं कि आप बाहर जाओगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी, ज्यादा मिल जाती है, पाकिस्तान से ज्यादा मिल जाती है. So that's just something I wanted to add on the point that Sid was raising. Yeah, Sid, go ahead. Yeah, very fair point, गुफरान भाई. हम अगर बाहर अंग्रेजों के मुल्क में जाके अच्छे तरीके से काम करते हैं और अपने अंदर जो सा वो
कह लें देसी कीड़ा है उसको जरा साइड पे कर लें, तो they do respect a person, they do respect an individual. Given that the West is an individualistic society, that might be one of the more probable reasons for it. But even in a collectivistic society as Pakistan and majority of the Eastern world, the individual respect is not supposed to be completely forgone. And we are in a democratic country per se. In a democratic country, although I do not agree with the whole notion of democracy to begin with, but since we are in a democratic, so-called democratic system, the individual does have a value which the system has taken away from us. और प्री पोल रिगिंग जिस हद तक की गई, the culture in which we belong to, the attacks that have been done to the candidates. अभी मैं पढ़ रहा था तो कुछ थोड़ी देर पहले कि जहांगीर तरीन के खिलाफ वो जो सी लेडी थी जिनको जो कॉन्टेस्ट कर रही थी जिन्होंने बैक आउट कर दिया, she was abducted and some unreasonable videos of her were made. पाकिस्तान में इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या कंसिडर की जाए? पाकिस्तान तो छोड़े, पूरी दुनिया में तो ये तो when the system has gone to that length, and I don't know if it was system itself or it was Jahangir Tareen himself, बदमाश तो वो भी है, किसके ऊपर आप ब्लेम करेंगे? डार फैमिली के घर के ऊपर अटैक किया गया था. Who are you going to blame? The Boots, the police, the Punjab police, or are you going to blame Khwaja Asif? तीनों के तीनों बदमाश हैं. उसके बाद and we were yesterday we were discussing कि अगर इमरान खान जीत जाता है उसको बदले की सियासत नहीं करनी चाहिए. The candidates, the members of the party, the people who have stood up and have faced all of those things, how can anybody say to them कि आप बदले की सियासत ना करें, कि आप माफ कर दें इस तरह की चीजें? The cards that they are playing, they know they are very dangerous. They know how it ends. They know that the next generation is fed up. जिस स्पीड से हम लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान की, कल मैंने एक बहुत गलत बात की थी, हमारी मेन एक्सपोर्ट्स जो सी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स और एग्रीकल्चर है. नो, हमारी मेन एक्सपोर्ट्स बंदे हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, लेबर फोर्स, ये हमारी मेन एक्सपोर्ट हो गई हुई है जी. एंड आई थिंक इसी वजह से लाइक हमारी जो रेमिटेंस है और जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो आगे पीछे रह रही होती है. ठीक है, 10 मिलियन लोग हैं गिव और टेक आपके जो एक्सपैट्स हैं इन पाकिस्तान, और वो 2 से 3 बिलियन पर मंथ उनका आता है, वेरी करता है इसी रेंज में, और आपकी एक्सपोर्ट्स भी अराउंड इसी तरह ही होती हैं. कुछ साल ऐसे भी गए हैं पिछले 5 साल में जिसमें हमारी रेमिटेंस वाज मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स. तो जो 25 करोड़ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा. वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे वो भी हमें सोचना पड़ेगा. बट दैट्स अ टॉपिक जो कि मेरा ख्याल है कल हमने हल्का सा टच किया था ऑन इकोनॉमिक्स, बट आई थिंक वी नीड टू डाइसेक्ट इट फर्दर कि व्हाई ये 25 करोड़ जो हैं वो 10 मिलियन के साथ कंपेयर नहीं कर सक रहे. जी, I'll go to Mahamsha. Mahamsha, if you have anything to add, आपके comments, you have been quiet for some time, and then I'll go to Madara. Maham? Not really. I just wanted to let you guys know that PTI is planning to hold a peaceful protest in front of the RO's office to protest the results, which I think is not going to do much, honestly. Secondly, the fact that Dilshad guy, he said that 2018 में भी ये हुआ था, अभी ये हो रहा है, चलता रहता है. I mean, it in few words he said that होता है, चलता है, पाकिस्तान है, ठीक है. तो मतलब are we like, if it's so normal, if it's so okay, then why is everybody treating it like in a bad way? Like if it's so normal कि हर कोई करता है, आते हैं, सभी करते हैं, तो पाकिस्तानी क्यों इस चीज पे चीखते रहते हैं कि रिगिंग हो गई, इसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ ज्यादती होगी. He also
आई मीन जो वीडियोस 2018 में हम भी थे, हम भी कोई मतलब उस वक्त हम कहीं ऐसी वो पे नहीं थे, ऐसी वीडियोस तो तब नहीं निकली थी जिस तरह से अब निकली हैं, जिस तरह से मतलब देयर आर ऑफिसर्स जो कैमरे पे बोल रहे हैं बाकायदा कि उनको एलईए वाले जो है धमकियां दे रहे हैं बिकॉज ही वाज नॉट लेटिंग देम wherever he was and there are videos जहाँ पे औरतें जो है वोट्स डाल रही हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मरियम नवाज का जो हल्का था वही था, और जहाँ पे एक कुछ वीडियोस घूम रही है जिसमें पुलिस वाला जो है पीटीआई के एजेंट को धक्के और मुक्के देकर बाहर निकाल रहा है बिकॉज ही कंप्लेंट अबाउट रिगिंग। तो आई मीन ये सब कुछ हमारे सामने ही तो हो रहा है एंड आई मीन ठीक है 2018 आई एम नॉट सेइंग कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, आई मीन वो भी कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स द लेसर ऑफ टू इवल्स, बट जिस तरह से बदमाशी से इस बार हो रहा है इट्स लाइक आई डोंट नो मैन, द गाय वाज लाइक यू नो आई एम सॉरी बट द गाय वाज लाइक पहले भी हुआ है अब भी हो रहा है तो क्या हो गया। जी, thank you, Maham. Matara, you're here. If you want to add something to this discussion, we are basically discussing the current elections, which happened yesterday in Pakistan. I know we are doing a bilingual conversation. We would try to respond to you in English. If you have something to add, please go ahead. And also, if you can introduce yourself a bit, whatever you want to tell. Yeah, please go ahead. Madara. Okay, I think Madara is not Madara, are here. you with us? No, I think he's. Yeah, Salman bhai, please go ahead. Salman. हाँ, तो ये अभी जो महाम ने बात की ना कि वो पुलिस की जो वो आई है, एक वीडियो आई है कि वो किसी पोलिंग एजेंट को उठा के फेंक रहा है। सलमान अकरम राजा को और उनकी बीवी को बाकायदा एक पुलिस ऑफिसर ने उठा के बाहर फेंका है, आर ऑफिस से बाकायदा। दे वर थ्रोन आउट, और उनको जो फॉर्म 47 की जो कंपाइलेशन हो रही थी, दे वर नॉट अलाउड टू विटनेस दैट कंपाइलेशन। तो ये मतलब सलमान अकरम राजा के लेवल के बंदे के साथ हो रहा है, तो अगर इससे थोड़ी हल्के लेवल का कोई कैंडिडेट होगा तो उसके साथ क्या कुछ नहीं किया होगा या कर रहे होंगे। और अभी इस तरह की न्यूज़ भी आ रही हैं कि जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको अब किडनैप करने के लिए और उनको इस तरह की कोर्जन करने के लिए, और देयर आर रूमर्स दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि दे मे कॉज सम हार्म टू इमरान खान इन द प्रिजन, एंड आई डोंट नो, लाइक आई डोंट वांट टू बिलीव इन इट। लेकिन जो लेवल ऑफ स्टुपिडिटीज हमने ऑब्जर्व की हैं, कुछ भी बैद नहीं है। तो आई जस्ट प्रे कि थिंग्स डोंट गो टू दैट एक्सट्रीम और कुछ अकल आए, कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। ये एक ऐसा डैमेज कॉज करेगा पूरे मुल्क को बियॉन्ड रिपेयर। ये पूरा जो मुल्क का मोराल है जो कि ऑलरेडी डाउन है, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जब आती है कि ये हमारे टैक्स के पैसों पे हो रहा है। ये पूरी इलेक्शन की मशीनरी ये हमारे टैक्स के पैसों से चलती है कि तमाम लोग जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी और लोग हैं, ये दे आर पेड थ्रू आवर टैक्स मनी। ये नेशनल एक्सचेकर से इनको मिलता है और ये हमारा पैसा यूज़ करके हमें ही सप्रेस कर रहे हैं और हमारे वॉइसेस को इस तरह से सप्रेस किया जा रहा है। दिस इज़ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग अबाउट इट। और ये मुझे पता नहीं कि कहाँ पर लेके जाएंगे इसको और किस तरह से होगा। ये गवर्नमेंट अगर फॉर्म कर भी लेंगे कोalition की, पीडीएम की, एवरीबडी नोज के इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जिस तरह के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, ये कोalition गवर्नमेंट जिस तरह की ये फॉर्म करेंगे, ये तो 90+ कैबिनेट बनाएंगे हर किसी को खुश करने के लिए। ज़्यादातर फोकस इस गवर्नमेंट का ये होगा कि किसी तरह हमारे कोalition पार्टनर जो हैं वो खुश रहें, उनको फंडिंग मिले, तरक्याती फंड्स मिले उनको, और वो तरक्याती फंड्स जिस तरह चाहे यूज़ करें। तो वो जिस किस्म का एक फिजिकल बैलेंस रिक्वायर्ड है, वो फिजिकल बैलेंस आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकेंगे। तो ये जो बात करते हैं ना नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट, ये बिल्कुल एक फार्स है, बिल्कुल बेहुदा बात है। और सबसे ज़्यादा जो बेहुदा बात लगती है मुझे, जो हमारे अक्सर पॉलिटिकल पंडित्स बैठ के बात करते हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। अरे भाई, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है आपके पास, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई डू यू नीड एनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
डॉक्यूमेंट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या हैसियत है भाई, क्या इसकी औकात है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या औकात है। वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी डेमोक्रेसी को फंक्शन रखने के लिए, वो सारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार एक तो एब्रोगेट किया जाता है, वायलेट किया जाता है, और किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट जो हमारी जुडिशरी की तरफ से होनी चाहिए वो भी नहीं की जाती। तो ये क्या बकवास है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, के तमाम पार्टीज मिलके बैठे हैं और चार्टर ऑफ, अरे भाई सबने हल्फ लिया है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहे ये लोग। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कौन सी रिस्पेक्ट की है किसी ने भाई? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था लेट बेनजीर भुट्टो, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हर ब्रेवरी, लेकिन उन्होंने उसी साल अमेरिका कॉन्डोलेंस राइज ऑन रिकॉर्ड कि अमेरिका की मदद से मुशर्रफ के साथ डील साइन की थी टू कम बैक, उसको बहाना बना के नवाज शरीफ वापस आए थे। और फिर मेमो गेट का जो पूरा एक फियास्को हुआ था उसमें वो काला कोट पहन के दोनों भाई जो चले गए थे। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से जरदारी ने उनकी गवर्नमेंट को चेंज करने का वो पूरा एक कॉन्स्पायरेसी के अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में जरदारी ने जो है वो किस तरह से सेनेट के चेयरमैन जो है उसको बनवाया और फिर बाद में उसको रिटेन करवाया। उनके जो वोट्स हैं वो के जो जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया उन्होंने कौन सी रिस्पेक्ट की है भाई? तो ये क्या मतलब किस तरह की बातें करते हैं बैठ के ये लोग? मुझे गुस्सा आता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं और इतने सीजन लोग जो हैं वो बैठ के पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो जो पूरी कमेंट्री है ना ज़्यादातर मीडिया के अंदर, ये तो ज़्यादा मेरे ख्याल में डिप्रेसिंग है हमारे लिए इसको सुनना। नहायत इल इन्फॉर्म किस्म के, और इतने इल इन्फॉर्म इतने इनआर्टिकुलेट बंदे जो हैं उनको इतना रिवेयर किया जाता है पाकिस्तान में। जैसे सोहेल वड़ाई साहब हैं, वो सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक लीडिंग पॉलिटिकल पंडित हैं, इतनी बेसरूपा बातें कर रहे होते हैं। उनकी वाहिद क्वालिटी ये है कि वो ये जानते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है उसका ससुर कौन है, उसका बाप कौन है, उसका भतीजा कौन है, उसके दादा जो हैं वो 1950s में ये इलेक्शन लड़े थे। ये उनकी क्वालिटी है और ये उनकी मेमोरी है, बस उनको चीज़ें पता है। लेकिन वो जो एनालिसिस, एक दफ़ा कह रहे थे कि हाँ पीटीआई का जलसा जो है बहुत बड़ा था लेकिन उसमें टूटी हुई चप्पल वाले लोग जो है उस तरह से नहीं थे, या पीटीआई के मूवमेंट में टूटी हुई चप्पल वाले लोग और टूटी हुई चप्पल वाले लोग जो है वो असल में मूवमेंट चलाते हैं। ये बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस का जितना लिटरेचर है उससे इग्नोरेंस की निशानी है। कभी भी टूटी हुई चप्पल वाले लोग नहीं चलाते रेवोल्यूशन, उनको बेचारों को 2 वक्त के खाने की पड़ी होती है, वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने वो होती है। हमेशा जो रिलेटिवली वेल ऑफ लोग होते हैं जैसे कि मिडिल क्लास हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है या जो एक मूवमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, तो वो अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को ट्रांसलेट करना चाहते हैं पॉलिटिकल रिकग्निशन के अंदर। That's what actually happened in every revolution, in every massive political change. That's what happened in French Revolution. That's what happened in other European revolutions. That's what's happened in Iranian Revolution as well. Iranian Revolution में कोई गरीब लोग नहीं चला रहे थे, वो मिडिल क्लास ही थी जो कि चला रही थी उसको। वो क्या हुआ उसके बाद, किस तरह के रेवोल्यूशन के बाद क्या इवेंट्स होते हैं, तो ये इस तरह की कमेंट्री चल रही होती है और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सारे लिटरेचर फेस्टिवल में बैठ के पूरा इको चैम्बर बनाया हुआ तो इन लोगों ने, और वहां पर जाके वही चीजें जो हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हमारा एक सीन है ना, उसके अलावा जो हमारा इंटेलेक्चुअल सिनेरियो है वो भी बड़ा बैंकरप्ट है, और जो हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हैं और वो एनालिसिस करने के काबिल नहीं है। उनको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। सेलेक्टिव एक मेमोरी है उन लोगों की चीज़ों के हवाले से। तो थिंग्स आर रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो जी सलमान भाई, I would like to rise I'll try with जी मैम। आई थिंक अभी जो है वो जो सेकंड फेज है डिस्कशन का कि पीटीआई जीत तो गई है काफी ज्यादा सीटें, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट? इमरान खान इज इन जेल, yes मेजॉरिटी जो लीडरशिप है देयर इन जेल, व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट? like I agree कि like इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है हमारे, जो कि एक जीत के आया है। ठीक है, मेरा ख्याल है 35 कुछ सीट्स, 35 सीट्स आर रिमेनिंग, जिनका डिसीजन नहीं आया था जब हमने स्टार्ट किया था। आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़, तो 35 सीट्स समथिंग उनका डिसीजन नहीं आया था। तो 96 ये थे
एंड अराउंड उन दोनों की मिला के कोई कुछ 110-20 बनती थी PMLN और PP की, बट लाइक they would be in a strong position क्योंकि इसमें से इंडिपेंडेंस टूटेंगे भी, बट दिलशाद वो saying that is actually true, वो टूटेंगे, बट एक चीज है जो कि बैक बाय इमरान खान थे ना अपने हल्के में, अगर इफ दे गो एंड बी विद समवन एल्स वो दोबारा उनसे इलेक्शन नहीं जीत सकते, दैट इज द राइटिंग ऑन द वॉल. सो वो ये नहीं है कि इमरान खान उसे कहेगा तो वो मानेंगे, उन्हें पता है कि उनकी जो करंट पॉपुलेशन है उसका सेंटिमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ if they it would be a very dumb move to now shift to other yes, parties and lose yes, everybody's yes, trust. इसमें yes, ये भी देख लेना कि जो छोड़ के गए हैं पीटीआई को, आईपीपी हो उनका क्या जाए हाल हुआ है, या yes, yes, पीटीआईपी में गए, आप जहांगीर तरीन को देखें कि उसने इतने अपने अगेंस्ट जो खड़े थे ना, इतनों को साइड पे कराया. अभी मैंने भी मेंशन किया था, खटक सिड ने को भी देखो, मेंशन किया. खटक को हाँ, फिरदौस आशिक अवान को 169 वोट्स मिले. 169. Firdaus Ashiq Khan, to be fair to Firdaus Ashiq Khan, he was contending against a very huge name. Even though वहाँ पे जो सा वो PMLN का वो मेंबर भी नहीं जीत सका, चौधरी अरमगान सुबहानी, but the Subhani family chooses to not win from, in the past at least, the history of Subhani family is that they would choose the particular constituency and they would just win. This is the first time that a Subhani would not be sitting in the parliament, which is a very huge thing in Sialkot's history. There's always a Subhani from Sialkot. Okay, I'll try with Bazara. Bazara, are you here? If you want to add something, please go ahead. क्योंकि yeah, you were there and you just joined again. Are you there? Bazara, we can't hear you. Might be because you're calling his name incorrectly. It's Uchiha Madara. No, it's Madara. Sid, it's Madara. No, it is Madara. Madara. You are very uncultured. Very uncultured, Furqan. We know the person, so yeah. Okay. I think he comes in and doesn't want to speak. So ये जो अभी हमने पॉइंट रेज किया कि पीटीआई इंडिपेंडेंट्स का आगे क्या ऑप्शंस, क्या पॉसिबिलिटीज. ऑप्शंस तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देयर आर टू ऑप्शंस. एक तो ये कि वो अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लें. उसमें अब ये क्लैरिटी नहीं है कि वुड दे, खैर दोनों केसेस में क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे. सेकंड ऑप्शन है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर लें. अब मुझे जिस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है उसमें वो ये कि जो मखसूस नशिस्तें हैं माइनॉरिटीज़ की, उनमें इन्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव अ सब्सटेंशियल नंबर. सो इफ दे ज्वाइन अनदर पार्टी, फिर जो ये मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो दोज आर दी ऑप्शंस. लेकिन टूटेंगे, इंडिपेंडेंस टूटेंगे, बट आई डोंट थिंक उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा. I think the impact would अच्छा, be. थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करूंगी. जी जी जी. Because we were having this discussion just today. तो दो चीजें हैं इसमें. एक तो इंडिपेंडेंस को नहीं मिलेगा, जो रिजर्व सीट्स हैं उनका शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो पार्टीज के लिए होता है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन. दूसरी बात ये कि ये हाँ एक सवाल है कि अब ये इंडिपेंडेंस टूटेंगे या नहीं टूटेंगे. तो उसमें ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में पीटीआई ऑलरेडी एक वेव ऑफ पार्टी सप्रेशन से गुजर चुकी है, जिसमें डिफेक्शंस और फोर्स्ड रेजिग्नेशंस हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के. तो आपको हमें किसी भी इस तरह की प्रेडिक्शन से पहले, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट कि लोग टूटेंगे या नहीं टूटेंगे. आई डोंट रियली लाइक दिस बिजनेस ऑफ प्रेडिक्टिंग थिंग्स. लेकिन ये जरूर है कि ये जो लोग हैं इन्होंने डिस्पाइट ऑल ऑड्स पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है. और वो ये कोई चीज नहीं है कि उनको उठा के जो है बड़े डिग्निफाइड तरीके से. एक तो ये होता है ना कि आपने अरेस्ट वारंट किसी के खिलाफ निकलवाया और जाके आपने उनको जेल में फेंक दिया, तो कम से कम वो फिर भी इन द एम्बिट ऑफ लॉ होते हैं. जब तक आप किसी शख्स को
रियासती तहवील में रखते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं, तब तक वो फिर भी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिसअपीयर्ड थे, जो लीगली मिसिंग या इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट कंसिडर ही नहीं किए जाते थे। तो लोगों ने इस तरह की कॉस्ट पे की है फिलहाल अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए। लोगों के घरों पे रेड्स की गई, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके घर के जो मुलाज़मीन थे, जो एक्सटेंडेड फैमिली तक अ, जो है उन्होंने ये इसकी कॉस्ट पे की है। लोगों के पूरे-पूरे बिज़नेसेस तबाह हुए हैं। तो इस तरह की किसी प्रेडिक्शन से पहले हमें बस मुझे लगता है कि इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट्स इस वक़्त खड़े हुए हैं पीटीआई के टिकट पे, दे हैव रियली put up a fight. So, I mean, I still think that some of them will break away, but I don't think it will be as easy. क्योंकि वो जो फर्स्ट वेव ऑफ सप्रेशन थी, उसमें ये सारा काम हो चुका है। Marzi, I'd just like to add, Dr. Salman, सलमान भाई just a small tidbit over here कि I agree completely कि इन्होंने काफी harsh time face किया, जिसकी वजह से that's why I said कि ना impact इतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले mention हो चुका है इस discussion में। लेकिन we have to keep in mind कि जब टिकट्स दे दिए गए थे, तब सिंध में there was this independent जो PTI back था, who bowed out of the election in favor of PPP. तो they are going to break. They are going to break, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसी वजह से जो आप कह रही हैं कि बेसिकली इन्होंने इतनी हार्शनेस फेस की है पिछले 1.5-2 साल में, एंड दे आर स्टिल देयर। तो आई थिंक ये they are capable of sustaining the burden that is going to be put on them, the pressure that is going to be put on them. Dr. Salman, please. मतलब ये जो मर्जिया ने भी बात की है सप्रेशन की, और गफरान ने भी उसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया है, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये कि इस तमाम एपिसोड के बाद एटलीस्ट पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी रियलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। इस पूरे एपिसोड से पहले 2 साल में जो कुछ हुआ है, इससे पहले ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन ये आउटस्कर्ट्स में होती थी, ये हिंटरलैंड में होती थी, और वी रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ दैट बिकॉज वी नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ गिल्टी ऑफ इट एज वेल। लाइक आई हैव नो लाइक लव लॉस फॉर MKM, लेकिन 90s में जो भी ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर MKM के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी यकीनन वहाँ पर हैं मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, और वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, और ऑफ कोर्स वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं। लेकिन एक स्टेट जब ये काम करती है ना, तो वो बेसिकली एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जिसके नतीजे में दूसरे लोगों को ये मौका मिलता है। फॉर इंस्टेंस, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस जो है इससे ज़्यादा बड़ा कोई जुल्म हो सकता है इंसानों के ऊपर। मतलब ये किसी को मारने से भी ज़्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि इसके नतीजे में आपकी फैमिलीज को, आपके लव वंस को कोई क्लोजर नहीं मिलता। डेथ के बाद तो क्लोजर मिल जाता है ना, तो ये एक ऐसी कांस्टेंट स्टेट ऑफ एगनी में आप छोड़ देते हैं उनके लव वंस को कि जिसको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी एक्चुअली नेवर एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ एगनी। तो उसमें वो चीज़ें जाहिर सी बात है कि ये स्टेट जब करती है, तो आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहीं खुद से गायब हो जाए, कोई बंदा कोई माफिया, कोई जो आपकी गैंग्स वगैरह हैं उनको गायब कर दें, कोई मिलिटेंट उनको गायब कर दें, तो वो नाम फिर स्टेट का ही आएगा ऑफ कोर्स। तो स्टेट खुद से ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये सब कुछ होता रहा है और इट हैज़ बीन रिपोर्टेड। लेकिन जिस तरह से ये मेन लैंड में अब आया है, खासकर पंजाब के अंदर, जिस तरह से पूरा एक वेव ऑफ ऑपरेशन जो है हुई है, क्योंकि पंजाब नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में भुट्टो के ज़माने में शायद जब प्रो भुट्टो या एंटी भुट्टो जब मूवमेंट चल रही थी उस पर थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन इस लेवल का मेरे ख्याल में जो क्रैक डाउन है विद इन पंजाब और मेन सिटीज़ यानी कि नॉर्थर्न और सेंट्रल पंजाब में, ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया। तो ये कम से कम है कि लोगों को एक फार्स था ना, एक फसाड जो था, एक मिथ थी, देयर इज सम लेवल ऑफ रैशनैलिटी व्हिच इज लेफ्ट, तो बिकॉज ऑफ द इररेशनल बिहेवियर एंड स्टूपिड बिहेवियर ऑफ सम इंडिविजुअल्स, वो फसाड जो है वो ब्रेक हो गया और लोग
बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स के हवाले से, और बहुत ज़्यादा वो चार्ज हो गए हैं इस हवाले से कि दे वांट सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन एज रिस्पेक्टेबल सलमान भाई, सिटीजन। तो I would like आई to होप कि वेदर इमरान खान रिमेन्स अलाइव और नॉट, लेकिन ये जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है ये किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो। और बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान एक्चुअली, इमरान खान पता नहीं कल जिंदा रहे, एक हफ्ते बाद जिंदा रहे, इट इज़ अबाउट एक्चुअली द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो वो अगर हम किसी तरह इस पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको उस तरफ हम ट्रांसफॉर्म कर सकें तो शायद हम एक क्रेडिबल स्टेट बनने के काबिल होंगे, एक फंक्शनल स्टेट बनने के काबिल होंगे। सलमान भाई की बात को थोड़ा सा मैं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, इनकी 4-5 पिछली बातों को लेके, कि रेवोल्यूशंस जो से हैं वो टूटी हुई जूतियों के लोगों से नहीं आते हैं, दे कम फ्रॉम द मिडिल क्लास, एंड actually when the middle class starts to feel helpless they become very dangerous. uh, मुझे ना बड़े अजीबो गरीब बात है, ये सारी बातें सुन के मीर अहमद कांसी याद आ गया. If somebody remembers him, he was a person, uh, my father had the chance to be his classmate as well. uh, जिसको ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ तो उसने अमेरिका के अंदर जाके सीआईए के ऑफिस के अंदर जाके सीआईए के ऑफिसर्स को गोलियां मार के फिर वहां से बाहर निकल के पाकिस्तान के अंदर वापस भी आ गया था. He was a very well educated individual. He was from a very well respected family, middle class बंदा. पाकिस्तान की स्टेट कह लें आप, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, यू कॉल इट द बॉयज, उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों के साथ, खैर अपर मिडिल क्लास कहना है आपने, अब मिडिल क्लास कहना है, गरीब नहीं थे वो लोग, और एक्सट्रीमली एलीट को तो खैर हाथ नहीं डालते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो खर्चा यहाँ से निकलता है, हमने 2 नंबरी यहाँ से करनी है. उनके घर की लड़कियों की नादेबा वीडियोस बनाई, उनके बेटों को, उनके भतीजों को, उनके भाइयों को अबडक्ट किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, हर तरीके से उनके ऊपर नाइंसाफ़ी की. एक किस्म का सेमी अपार्थाइड स्टेट की सी सिचुएशन उन्होंने करने की कोशिश की, जिसके अंदर सेग्रीगेशन एथनिसिटी का नहीं, पॉलिटिकल पावर का है. व्हाट वुड यू कॉल इट, द स्टेट पावर, द डिफरेंस बिटवीन, लेट्स जस्ट से कि ब्लडी सिविलियंस को ब्लडी तरीके से मारा गया. What do you think is going to be the response of somebody who is from the middle class if they don't have anything to lose? ये किस तरफ लेके जाएंगे? और जिन लोगों के साथ अभी ये सब कुछ पिछले साल के अंदर हुआ है, they are not just your run of the mill regular people. These people are the people who, in the face of very extreme odds, stood up for a political ideology. Now, I can agree with that ideology or not agree with that ideology. I can have a lot of different opinions, but they stood up. They were not the kind of people who would generally just stay back कि भाई अपना 9 to 5 कर लूं किसी तरीके से. You took away from them their sovereignty, their protection, their facade of sanity. Do they understand the repercussions कि जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वो ये कर रहे हैं, they don't forget. सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के आने से पहले ना, इट वाज जस्ट 2 सेकंड मर्जी जी, ख्वाजा आसिफ के आने से पहले ना सियालकोट बहुत वायलेंट सिटी था. Most of the people do not know this about Sialkot. The top 5 gangsters of Punjab were from Sialkot. Very dangerous individuals. बब्बी शाह सियालकोट का था, उसने तो वो ज़ियाउल हक की जो सी बीवी है उसको भी चूना लगा दिया था. He died in front of me. I hold that, let's say, I was in that particular situation.
तो लोग जो उनसे वो तो बहुत खतरनाक थे। ये एक जो फसाद क्रिएट हुआ था विद द इनकमिंग ऑफ द मॉडर्न एज विद द डिजिटलाइजेशन, पीपल काम डाउन। Now you have taken away from them their sense of security for saying or doing what they think. And आपके पेट अगर भरा हो तो आपने कुछ ना कुछ तो करना है, मिडिल क्लास का पेट भरा होता है। You take that away from them, you're turning the educated masses into very bloody violent people. Do you think that they're going to forget it? The establishment has to think about that. जी मर्जी है जी। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इससे या आपकी मैं बात से आई मीन आई डू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बट आई वुड let me finish, Maham, please, and then you can say what you want. हाँ जी, तो मैं ये कहती कि मैं थोड़ा-सा आई डू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, सिर्फ 2 साल में नहीं बल्कि उससे पहले भी, तो उसमें अगर आप थोड़ी-सी भी समझ-बूझ रखते हैं या एक सेंसिबिलिटी है आपकी फंडामेंटल राइट्स की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी की तरफ, सो ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स यू एंड यू डू फील वेरी आउटरेज्ड एंड ऑफेंडेड कि ये एक रियासत इस तरह की हरकतें अपने सिटीजन्स के साथ किस तरह से कर सकती है। और इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी कि अब इसके बाद जो है ये बातें कहना बहुत आसान है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स नेशनल रिकंसिलिएशन, लेकिन जो कुछ हुआ है, सो हाउ डू वी फॉरगेट? आई मीन बेसिकली वी फॉरगेट एंड वी मूव ऑन बाय रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ एंड बाय ब्रिंगिंग एवरीवन अंडर द एम्बिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये जो हरकतें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में होती हैं ना, कि इसकी एक का दौर आता है तो वो फिर दूसरे के अगेंस्ट बदले लेता है, और फिर जब दूसरे का दौर आता है तो वो पहले के अगेंस्ट बदले लेता है, एंड this is a vicious cycle. It goes on and on and on, and it needs to stop. और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ बहुत ज्यादा वीक है। अभी सलमान बात कर रहे थे कि हमारे पास हर चंद साल बाद ना इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पब्लिक डोमेन में थ्रो कर दी जाती हैं कि चलें, लेट्स टॉक अबाउट द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल रिकंसिलिएशन, let's talk about a charter of economy, but I mean beyond the boilerplate statements, what are the brass tacks of these? क्या मतलब क्या है इन बातों का? आप क्या कहना चाह रहे हैं? और अगर आप किसी चार्टर की बात कर रहे हैं तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में मौजूद है आपके पास। तो मेरा ये ख्याल है कि अब अगर पीटीआई की नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जब भी आती है वो इमरान खान के साथ आती है या इमरान खान के बगैर आती है या वो किसी और की गवर्नमेंट आती है, तो ये विंडिक्टिवनेस का जो ये पूरा साइकिल है ना, इससे आपको आगे निकलना पड़ेगा किसी तरह से। उसमें ज़ाहिर है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के हवाले से भी कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ राइट्स की वायलेशंस इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग हैं, जैसे ये एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस का जो मामला है, ये तो आप ये तो कांस्टेंट रहा है अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट्स। तो इसको तो एड्रेस करना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे कैन नॉट बी एन इफेक्टिव हीलिंग प्रोसेस। लेकिन ये करना कि अपने सियासी हरीफ़ैन के कारोबार आपने तबाह कर दिए, उनके घरों पे अटैक्स करवा दिए, उनके खिलाफ बोगस किस्म के केसेस रजिस्टर करवा दिए, या अगर कोई बोगस किस्म का केस पहले रजिस्टर हुआ हुआ है तो फिर आप गवर्नमेंट में आए तो आपने बाकी जो केसेस हैं उनको ओवरराइड करके और इस तरह के केसेस में आप अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, स्टेट के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फजूल किस्म की हरकतें हैं, और इससे होता ये है कि इससे अल्टीमेटली आपकी फेडरेशन वीक होती है और आपकी गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करती है। यानी अभी हमने शुरू में बात की थी 2022 और 2018 के कंपैरिजन्स की, और ये नून के जो सपोर्टर्स हैं, ये कभी भी इस तरह की बातें मानते नहीं हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर अभी भी जो केसेस बने हुए हैं, उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है पैनामा पेपर्स के केस से। पैनामा पेपर्स जो है वो कोई इंटरनली ऑर्केस्ट्रेटेड साजिश नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल लेवल का लीक था, और उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये लीक हुआ था मई 2016, अप्रैल मई 2016 के अराउंड ये हुआ था। उसके बाद जो पहली हियरिंग लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की, वो लगी है अक्टूबर 2016 में। और उससे पहले इमरान खान जो है वो सड़कों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो टॉक शोज़ में जाते थे और वो कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके हवाले से इस तरह का इतना मैसिव इंटरनेशनल स्कैंडल आया है और यहाँ की कोर्ट्स उसके खिलाफ जो है वो मोबिलाइज़ नहीं कर रही। तो उस वक़्त उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो कोई कंपैरिज़न नहीं है इस तरह के केसेस का, जो कि बिल्कुल ही बोगस किस्म के ग्राउंड्स पे क्रिएट किए गए, और एक वैलिड केस का। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि इतना इतना वो स्ट्रॉन्ग केस है शरीफ फैमिली के अगेंस्ट, कि इवन काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केसेस केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
जिस तरह से आप उनको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, मसला उसमें है और वहाँ पे नज़र आ जाता है कि एक विंडिक्टिवनेस का एलिमेंट है। तो अब होता क्या है कि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग केस को भी इस तरह की पेटी हथकंडों से चलाने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। यानी नवाज़ शरीफ का केस किसी ट्रायल कोर्ट से चलता और फिर जो भी होता उनके साथ वो होता, बट अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई किस बुनियाद पे हुए? वो सादिक और अमीन ना होने की वजह से क्वालीफाई हुए। हालाँकि इट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑफ करप्शन अगर आपने उसकी जीआईटीज़ पढ़ी हो, अगर आपने जीआईटी के स्टेटमेंट्स वगैरह फ़ॉलो किए हों, इनको तो बड़ा लेंथी ट्रायल भी मिला था। इमरान खान के केसेस में तो उनको ट्रायल और डिफेंस का इतना चांस भी नहीं मिला। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन दीज़ मैटर्स वी रियली नीड टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ थिंग्स। यानी हम ये नहीं कर सकते कि वक़्ती तौर पे गुस्सा आ रहा है, तो वक़्ती तौर पे गुस्सा उसको निकालने के लिए या अपने आप को ठंडा करने के लिए आप हथियार उठा लें। या आप जाके कुछ भी कर दें and then you won't feel relieved, you won't feel relaxed unless there is a larger situation of peace and calm, and there is the opportunity for everyone to prosper and to build their lives. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये है कि कभी आप एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी लेते हैं, जो कि किसी भी जमहूरियत में जो लोगों को लेने का हक है, जैसे प्रोटेस्ट करने का लोगों को हक है, वो एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल मेजर है, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज्ड डेमोक्रेटिक राइट है। योर राइट टू असेंबली इज़ एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, वो आप सारे करें। बट आई थिंक कि इस वक़्त जो हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए वो ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की पाबंदी हो पाकिस्तान में, वो चाहे पॉलिटिक्स में हो, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल और एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स में हो, वो चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में हो, लेकिन जब तक हम ये अपना रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करेंगे, ये मसले इसी तरह से चलते रहेंगे। तो I don't see honestly, I don't see a very promising solution in violence. मर्जिया आपने बड़ी जबरदस्त बात की है Said, I think Maham had to add something. Maham, are you there? I, I think Yeah, she's Sid. having a connection issue. Yeah. Please go ahead. Sid. Sorry. आपने मर्जिया जी जो सी बातें की हैं आई वुड लव टू एग्री विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम बिकॉज दे मेक परफेक्ट सेंस they are how a political system should be and it is exactly how it is written in the books and that is the way forward. प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस लॉ को लेके चल रही हैं वो लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं. नाउ लेट अस सपोज कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल पावर के अंदर आने के बाद हो रहा है. माय फियर इज दैट द पीपल might not limit themselves by having or not having political power. What I fear is that people are going to become vindictive on individual levels. मेरा ये खतरा नहीं है कि इमरान खान जो है वो पावर के अंदर ऑनेस्टली looking at the conditions I have very huge doubts that Imran Khan will as of right now will be able to actually make a government considering PMLN and PPP can always just join and gather MQM with them, a little bit of individuals along with them, and well, we have a coalition government and all of those independent candidates can sit in the opposition. It's a very high likelihood right now. आप नवाज शरीफ को फिर आप कोई प्राइम मिनिस्टर बना दें या बिलावल भुट्टो को आप कोई 3-4 मिनिस्ट्रीज दे दें पीपीपी को and then there you have it. PTI is not in the government after all of this. They have no power. The individuals that had to suffer have no power. People might get vindictive even then. Yeah, I had a few comments. आज I was on a listening mode. Usually I'm not, but मजा आया. But like COD, Charter of Democracy, क्या जरूरत है? ठीक है, पॉइंट बिल्कुल ठीक है. जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और मैं उस तरह आप लोगों के like you are political scientist बड़े अच्छे words use करते हो. I would be a bit crude in saying कि जिस तरह चोर होते हैं they know the law. चोरी करना गुनाह है, चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगी, बट उनके दरमियान भी ना कुछ कायदे ज़वाबित होते हैं कि यार
ये एरिया मेरा, ये एरिया तुम्हारा, तुम उधर चोरी करो, मैं इधर करूंगा। तो चोरों में भी ना कुछ उन्होंने कायदो जवाबित करने होते हैं, कुछ बंटवारा करना होता है कि यार Honor among ये thieves. Honor among ऑनर thieves. ऑनर अमंग थीव्स, या तो इनके दरमियान कुत्ते भी करते हैं मार्किंग अपने एरिया की। यस यस यस, तो वो दे मार्क द टेरिटरी, यस। तो दे बेसिकली से कि यार ये ना करना, तुम ये ना करना। बट जो दो पार्टीज के दरमियान हुआ था, एक काला कोट पहन के जा रहा है, ब्रीच तो इन्होंने ही किया आपस में, इट वाजंट इमरान खान। अगर इनके दरमियान हो भी गया था, इतना अच्छा था अब तो लाइक उससे पहले लाइक इट वाज ब्रीच्ड, इवन इमरान वाज बिफोर इमरान वाज लॉन्च्ड। और मेरा ख्याल है ये जो लोग आर्गुमेंट रेस करते हैं ना कि खान को 18 में या 11 में पाशा एंड देन 18 में बाजवा, इन्होंने लाइक लॉन्च किया, इसे पुश किया टू विन द इलेक्शंस एंड ऑल। आई थिंक नहीं, इस इलेक्शंस में और जो पिछले 2 साल हैं, मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने अभी खान की उंगली पकड़ के इसे पॉपुलर बनाया है। 19, 20, 21 खान की पॉपुलैरिटी वाज एट अ डेक्लाइन। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये टर्म पूरी करता, ये कभी भी री इलेक्ट होके आता, ये शायद केपी भी दोबारा ना जीते। देखें, अगर if they DP had gone for election right after vote of no confidence, Imran Khan would not have won. That नहीं, was the state at that point. नहीं, इवन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही वुड हैव वन। अगर वो ना होता, द वे इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, ठीक है, दैट ब्रॉट हिम बैक टू द पावर। सो दैट इंटरवेंशन, आई थिंक ये जो इंटरवेंशंस करते हैं ना, लेट देम डाई देयर ओन डेथ, हैव सम पेशेंस। ये जो 3 साल के लिए जनरल साहब आते हैं ना, ठीक है, थोड़ा डर लगता है कहते हुए, तो चलो कह दिया, बाहर बैठे जनरल साहब आते हैं ना, ये 3 साल के लिए आते हैं, दे आर नॉट पेशेंट इनफ, इन्हें अपनी एक्सटेंशन चाहिए होती है, और उसमें दे मेक स्टूपिड डिसीजंस। अगर तुम ले ही आए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे मसला है, तो वेट कर लो, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। चाहे इफ इट्स नवाज, इफ इट्स पीपीपी, पीपीपी कभी आ सकती थी वापस। आई थिंक पीपीपी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ पॉलिटिकली। वो लाइक ठीक है, धांधली अपनी जगह, 18 में भी हम क्लेम करते थे, 13 में भी हमने देखा, बट आई थिंक वो चलती हैं ये बातें। हमारा जो सिस्टम है ना, जिस तरह का ईसीपी है, वो आके जो उनका चेयरमैन है, वो बेचारा कह रहा है कि यार अभी ना जमा कराए आरओज ने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है। दैट फ्लॉट सिस्टम इज देयर इन पाकिस्तान। बट मेरा ख्याल है कि पीपीपी ने गेन किया है बहुत कुछ, और वो उनकी सॉफ्ट टोन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं, दे आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ देम। फुरकान भाई सलमान एक भाई बात उसमें दोगलापन है, उसमें दोगलापन है। नहीं, देखो उसमें देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बिलावल एंड जरदारी एज वेल ऑन सर्टेन ओकेजन्स, बट आई विल गो टू महम। जरा एक बात तो बताएं, वो जो आपको नहीं लगता कि फिर अगर जो आप ये बात कर रहे हैं, तो उसमें इमरान खान को भी जरा नवाज शरीफ को ब्रेक देना चाहिए था। वो जो आजादी मार्चें हो रही थी, वो पता नहीं पार्लियामेंट को पीटीआई वाले, तो देखो मसला सिर्फ आप अगर यहाँ पे देखा जाए ना, मसला सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस भी तो इंसान के बच्चे नहीं है ना। आई मीन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन नॉट, वो उनकी बिडिंग करते हैं, उनको पता है कि वो लोग उनके साथ खेल सकते हैं, वो क्यों नहीं खेलेंगे। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इमरान खान भी एक जमाने में बाजवा के साथ तो चम्मी था ना। या देखें, इसमें एक चीज जरा देख लें, अगर गुफरान एक चीज ऐड कर दूं, like I used to have heated debates, although I incline towards PTI, like most of the people here know, but like I used to have a heated discussion in 2019, 20, even 21 before, like tab bhi initially 21 में like they were like we are on the same page, ये statements खान साहब से आती जैन फेब में, ठीक है, कि क्यों इतना क्लोज हो रहा है टू द फायर, यू वुड बर्न, ना हो इतना क्लोज, ना रिलाई करो इन पे टू पॉलिटिकली मैनूवर योर ओपोनेंट्स, ये आपको बर्न करेगा इन वन वे और द अदर, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इन लाइक बेवकूफी है ना कि आप किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हो, और वो हाथ पकड़ के चल रहा था,
अब उसे समझ लगी, आई होप वो दोबारा हाथ इनके साथ ना मिलाए, क्योंकि जब नैरेटिव वोट को इज्जत दो वाला नूनली का था ना, मैं सच बता रहा हूँ, आई रियली लाइक दैट नैरेटिव। वो खड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि फुरकान मैं भाई मिला लिया हाथ फिर आप क्या करोगे? हाँ हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि द सेम पीपल, आई वाज लिसनिंग टू अ फ्यू पीपल, अभी एक वो लाइक एक डिस्कशन में आई वाज लिसनिंग, सिड वाज आल्सो देयर, उधर ऐसे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जो कि लाइक दे वर नून लीग सपोर्टर्स और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पीक पे थे ये लोग 1920 में, एंड द सेम पीपल आर सेइंग के नहीं, एस्टैब्लिशमेंट इज गुड एंड ऑल। तो उन लोगों को देख के मुझे होता है कि यार क्या करें, बट हम एज पीटीआई सपोर्टर्स लाइक इंक्लूडिंग मी, लाइक बहुत से लोग उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, नहीं नहीं यार, पाक फौज हमारी, ये बिल्कुल ठीक है, अगर इंटरवेंशन कर भी रहे हैं, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक जो सलमान भाई ने बात की है कि ओवरऑल ये जो एक प्रोसेस है, जो प्रोटेस्ट रजिस्टर हुआ है, इट्स अ प्रोटेस्ट, और वो ब्लडी प्रोटेस्ट के हमारा लीडर खान भी अगेंस्ट था, ठीक है। मैं हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर पीटीआई सपोर्टर्स, बट इट्स नॉट अ ईगो चेंबर, एनीवन कैन कम, बट लाइक जो Not- इमरान खान है, उसका उसका जो एक है कि नॉन वायलेंट आप करो तरीके से, तो दिस वाज अ प्रोटेस्ट यस्टरडे, और वो रजिस्टर हुआ है और इंटरनेशनली रजिस्टर हुआ है। बहुत से आपके पब्लिकेशन हाउसेस ने पब्लिश की हैं आर्टिकल्स के पॉज हुआ इलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स का, ठीक है, और उस पे वो क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग, और इनसे हार्श क्वेश्चंस पूछे हैं कि भैया आपने इंटरनेट क्यों बंद किया, आपने फोन कनेक्शंस क्यों बंद किए। वो चेयरमैन से पूछते हैं, कोई लाइक फॉरेन जर्नलिस्ट थी, वो पूछती है कि भैया आपने वो बंद कर दिया, उस पे तो वो उन्हें पता लगना है कि पोलिंग स्टेशन कौन सा है। तो आगे से कहते हैं उन्हें एम्पल टाइम दिया था हमने पहले, ये वो। तो कहते हैं अगर चेक नहीं किया तो वो इधर उधर की मार के चला गया, ठीक है। तो लाइक इतने स्टुपिड लोग हैं इसमें कि I'll add something हम यहाँ पे मैं to this. सलमान भाई एक इंटीरियर सेकेंड, अच्छा इंटीरियर मिनिस्ट्री का फुरकान आज भाई एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये गुफरान, ये माहम वांटेड टू से समथिंग। जी माहम। just something small, otherwise it will go away. फुरकान भाई, ईसीपी वालों ने सबको मतलब काइंड ऑफ पोस्ट किया हुआ था कि इस नंबर पे कॉल करके हमें कंप्लेंट करें अगर पोलिंग स्टेशन में कोई मसला हो, and the services were not available. That was a joke. God damn, son. इसी पे मैं I'll add on to that कि इंटीरियर मिनिस्टर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई से आज लेकिन अर्लियर टुडे, और यही बात थी कि इंटरनेट रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से हमने किया। तो समवन आस्क्ड कि आपने इलेक्शन कमीशन को इस पे इन्फॉर्म किया था, क्योंकि दे आर मैनेजिंग अ ह्यूज इलेक्शन इन एन एंटायर कंट्री। तो उनका नहीं हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो फिर आगे इंफॉर्मेशन हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। दिस इज द स्टेट ऑफ मैनेजमेंट इन दिस कंट्री कि आप एक, ठीक है उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बट यू आर कंप्लीटली इरेडिकेटिंग अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल। और वो बात क्या कर रहे हैं, कहते हैं कॉमनवेल्थ वालों ने कहा था, वो सुलंगी बैठा हुआ था साथ, कॉमनवेल्थ वालों ने बात की थी कि फोन मोबाइल से पहले भी इलेक्शन होते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते। सो दैट्स द जस्टिफिकेशन फॉर दिस, सैडली। एंड उसके ऊपर मैं वो कहते हैं ना, जले पे तेल छिड़कना। एक तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दिया, 8300 जो सा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद जो मैंने पिछले शो के अंदर भी आप सबको बताया था, एक घर के अंदर जो से वोट्स है उन्होंने उनको डिस्पर्स कर दिया अलग-अलग जगहों पे, कि आपको वाकई में ना पता चले कि आपका वोट किधर कास्ट होना है। इजंट दैट अ डबल वैमी। सलमान भाई की बात बीच में रह जानी है, सलमान भाई की तरफ चलते हैं। जी सलमान भाई। उसमें मतलब ये जो जिस किस्म की अभी रिगिंग हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये स्टैंड करेगी अभी आगे कोर्ट्स के अंदर, और कोर्ट्स के पास क्या जस्टिफिकेशन होगी इन अपील्स को टर्न डाउन करने की। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मतलब वो फॉर्म 45 जो है वो पूरे सॉर्टेड हैं और डिजिटली भी सेव हो गए हैं सबके पास,
और मतलब जमात इस्लामी के जो वो थे यहाँ पर कराची के जो चीफ है उनके हाफिज नईम रहमान, उन्होंने अभी ऑफर की है कि वो कराची में जितने भी अपील्स होंगी उसमें वो पीटीआई के लोगों को सपोर्ट करेंगे और अपने फॉर्म 45 भी उनको प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टैंड करेगा ये जितनी भी रिगिंग वगैरह हुई है। और ट्राइब्यूनल्स के लेवल पे चलो उनको आप मैनेज कर लेंगे, हाई कोर्ट्स के लेवल पे कैसे वो करेंगे? तो कैसे ये चलेगा सिस्टम और किस तरह से रिजर्व सीट्स आप डिटरमाइन कर I पाएंगे? have a point after this. हाँ, आप कहो जी। फरहान। हाँ जी, जी। सलमान भाई, डॉक्टर साहब, मैं कहने लगा था कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस हुए थे। एक में मिसिंग पर्सन्स की बात हो रही थी, तो बात आई इमरान रियाज खान की, जिसका पूरे पाकिस्तान को पता है कि बंदा जो है कोई 150 दिन जो है 150 दिन समथिंग ही वाज अ मिसिंग पर्सन। तो उस पे कोर्ट ने कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं इस बंदे का। कोर्ट सोशल मीडिया में देखते कोर्ट नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने राइट कहा राइट या मुझे नहीं 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 पता। फुरकान, डॉक्टर फुरकान काजी डॉक्टर फाइज फुरकान, ईसा देखिए दामद बरकातहुम आलिया। नहीं हाँ, डॉक्टर रहमतुल्लाह अलैह फुरकान, साहब डॉक्टर ने सलमान, ऐसा काइंडली आई विल हैव टू डिसएग्री विद बोथ ऑफ यू। उन्होंने खुद कहा था कि ये जो सरदार और इस तरह के टाइटल्स हैं ये नहीं चलते। तो फाइज ने कहा था कि मैं जानता नहीं उसे, सोशल मीडिया में देखता नहीं हूँ। उसके बाद एक और हियरिंग हुई थी उसी कोर्ट में, पैनल वाज स्लाइटली डिफरेंट, फाइज बैठा हुआ था उधर ही, और उस पर बात हो रही थी सोशल मीडिया वाले पे, कि जो इन्होंने कहा था कि कोर्ट्स के अगेंस्ट बातें चल रही हैं, जजेस के अगेंस्ट। तो उस पे डिस्कशन क्या हो रही थी कि थंबनेल्स पे जो होता है वो वीडियोस में डिस्कस नहीं होता, कि दे कैन नॉट डिसाइड कि वो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं कि नहीं करते, और उन्हें ये भी नहीं पता कि क्लिक बेट क्या चीज है। तो इस तरह डॉक्टर सलमान, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट। I also want to bring मजे की into बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज है, उनके नाम में सरदार है, उनका नाम सरदार तारिक मसूद है। I know. और वो सलमान भाई अलेजेडली फाइज के कैंप में है वो। अच्छा, जी सर। आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर अटेंशन कि अभी रिसेंटली ये जो इद्दत केस है ना, अब मेरे ख्याल से लोगों को ना इसकी रिलीजियस कॉनोटेशंस की समझ नहीं आती। व्हाट द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैव डन इज दे हैव डिसरिगार्डेड अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन in the Islamic Republic of Pakistan when they make a bogus punishment on a religious institution called marriage. Pakistan mein marriage is not just a legal institution like it is in America and UK. In Pakistan, marriage is a religious institution and they have made a mockery out of it. अमेरिका से गोरे जो से हैं हमारे उलमा, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट शरिया, यू कैन नॉट मेक अ जजमेंट लाइक दिस। पाकिस्तान में मैरिज सिर्फ एक लीगल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, वो तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। उसका जब आप मजाक बना सकते हैं तो ये तो 2 कौड़ी के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म 45 है, इनका क्या है? हमारे मुझे चीफ ऑफ उसमें आर्मी मैं स्टाफ कह रहा हूँ कि साहब अगर चलो हाफिज हैं, शादी गलत उन्होंने की है बोल दिया और तो शादी गलत हुई उसकी, इसका मतलब है उन्होंने जना किया है ना, तो जना की सजा जो है वो कोड़े मारना है। तो लेकर आओ पब्लिक में उसको कोड़े मारो भाई, ताकि इस बहाने हम खान को देख सकें। तो जब कोड़े पड़ते हैं उसको उसमें देखेंगे। like किस I कानून remember के तहत उसको 7 साल की सजा दी है? कौन सा इस्लामी कानून है, कौन yeah. सा पाकिस्तानी कानून है भाई? नहीं, यार बट इसमें आप इसी चीज में द प्रॉब्लम विद दिस सिचुएशन जो इन लोगों ने इमरान खान के साथ किया ना, ये सारा ये जो खुले का और ये जो सीन था, they don't, I don't know if they realize it, they don't care, but the thing is that a lot of men will now start doing these cases on their ex-wives. You know how vulnerable they've made women in this whole situation. यहाँ पे तो मेजॉरिटी औरतों के पास तो कागजात भी नहीं होते, वो बोल के तलाक दे देते हैं और वो मान जाती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं। That's exactly what Bilawal Bhutto said in a podcast के आपने खवातीन की जो एम्पावरमेंट की सारी चीज है उसको एक एट स्टेक डाल दिया है इस चीज से। बट लाइक इद्दत का जो इशू है वी कैन डिस्कस। आई नो लाइक
Baham said Marzia Samran are quite interested or quite knowledgeable as well on religious matters. So after ultrasound and DNA, क्या है इस पे, तो वो भी हम देख सकते हैं किसी दिन और, बट लाइक या, और देर आर सर्टेन अदर के फर्टिलिटी एंड ऑल ऑफ द वुमन एज वेल, तो उसमें लाइक ये क्या है बेसिकली इद्दत का मामला, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी शेमफुल थिंग जो हुई है, और पीपीपी की तरफ से उनके लाइक जो चीफ साहब हैं बिलावल साहब, उनकी तरफ से तो आ गया कि यार ये गलत है, बट नून लीग वाले वो कह रहे कोर्ट हैंडल करेगी, उनका करने दो। और The उनकी thing is कि लीडर उनकी भी हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है, नून लीग की हाँ, हिस्ट्री अच्छी नहीं है इस exactly. मामले में। अगर उन्हें दंगा करने पे आया कोई, कभी आर्मी अगर दोबारा उनके अगेंस्ट हुई, तो ये सारे केसेस इन पे भी बन सकते हैं आगे। तो दे डोंट रियलाइज कि जो चीज अभी चल रही है वो आगे रिपीट होगी, आगे दोबारा होगी और ज्यादा मैग्नीट्यूड से होगी, मैग्नीफाई करके आएगी दोबारा। तो दे आर मेकिंग देयर ओन बेड्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड टू स्लीप इन देम। The shadiest politician in terms of marriage record is Shahbaz Sharif. Just a second, let me fix this. Yes. तो मैरिज रिकॉर्ड के हवाले से शहबाज शरीफ है भाई सबसे शेडी, जिस तरह की मैरिजेस उसने किए हैं, वो पुलिस ऑफिसर की बीवी को तलाक दिलवा के शादी की उसने, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं मशहूर हैं उनके बारे में। तो ये सारे उनकी पब्लिक भतीजी उसमें भी आएंगी इतनी कोई तो क्लीन क्या नहीं है। तमाशा होगा यहाँ पर। Yeah, I think let's get into दूसरी बात study. ये मेरी किसी से जब ये सॉरी आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग, जब इद्दत केस शुरू हुआ था तो मेरी किसी से बात हुई थी, एंड यू नो इट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन, बड़ा मेरा क्लोज एक दोस्त है, तो उस की बात हो रही थी, एंड यू नो एट वन पॉइंट ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ऑन द इद्दत केस ही सेड कि यार लेकिन अगर इद्दत पूरी करके किसी से आपने शादी नहीं की है तो वो मैरिज तो फिर इलीगल है ना, व्हाटएवर। तो मैंने उससे कहा कि भाई मसला ये है कि ये नेशनल इशू नहीं है ना हमारे लिए, हाउ डज इट अफेक्ट अस? अगर उसने इलीगल कोई मैरिज की भी है, उसने रिलीजियस तकाजे पूरे नहीं भी किए हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव इशू कैसे है? तो मेरे ख्याल से एक जो चीज लोगों को रियलाइज नहीं होती, और ये इस तरह की बातें आप खास तौर से एक पर्टिकुलर जनरेशन के लोगों से, हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन के लोगों से बात करें, तो वो तो बहुत ज्यादा उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। उनके लिए ये प्रोप्राइटी का, मोरालिटी का मसला है कि ये कैसे हो सकता है। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि पाकिस्तान में इस तरह की ये जो पुलिसिंग है ये हम नहीं कर सकते किसी के लिए भी, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, वो कोई और हो, यू नो ये कोई बात ही नहीं है करने वाली। अब ये बिल्कुल एक डिस्गस्टिंग लोएस्ट नादिर है हमारी पॉलिटिक्स का, जिसमें आपने अगर इमरान रियाज खान के हवाले से वजाहत सईद खान का ब्लॉग देखा तो वो उसमें बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान को ये भी ऑप्शन दिया गया कि तुम जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ एक वीडियो बनवा लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, या तुम एक वीडियो में ये क्लेम कर दो कि इमरान खान जो है वो सॉडोमी का शौकीन है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मतलब आप पॉलिटिकल राइवल्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये क्या ओछापन है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरह से पब्लिक में ला रहे हैं और ओछी-ओछी किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी जब भी कोई इंसान ये काम करता है ना, तो पता चल जाता है कि उनके पास कोई क्रेडिबल केस नहीं है आपके खिलाफ। कोई क्रेडिबल ग्राउंड्स ही नहीं है जिस पे आपको ड्रैग किया जा सके या जिस पे आपको पब्लिकली शेम किया जा सके। तो फिर उसके बाद यही ले दे कि यही चीज़ें बच जाती हैं कि इसका उसके साथ अफेयर था, इसने इतनी शादियाँ की हुई हैं, इसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, इसकी सेक्सुअल लाइफ ऐसी है, वैसी है। आई मीन हाउ डज़ इट कंसर्न अस? और ऑन द अदर हैंड आई मीन पाकिस्तान में सब कुछ होता है। सो ये लोगों को ना ये जो प्रिटेंशन है ना पाकिस्तान में कि सब बहुत अच्छी कोई बड़ी पाक पास लाइफ्स गुजार रहे हैं, तो ये छोड़ देनी चाहिए। अब ये फौज के लोगों को भी ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी नहीं करनी चाहिए, और जनरली लोगों को भी जो रियल इश्यूज हैं मुल्क के, जो इकोनॉमी का बदतरीन हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं है मुल्क में, millions and millions of children are out of school in this country and nobody is concerned about that. I mean, you know, child sexual abuse is such a big problem in this country. सड़कों पे आप अपना बच्चा बाहर खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम खुद जर्मनी में रहते हैं, फुरकान यू कैन रिलेट टू दिस कि कितना हम बच्चों के हवाले से वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी इश्यूज हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के, बट इट इज नथिंग, द स्केल इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान। तो इन इश्यूज पे तो आपकी कोई ध्यान नहीं है और आप तो अडल्ट्स की इंतहाई प्राइवेट मैटर्स को रेगुलेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत छिचोरी हरकतें हैं और मेरे ख्याल से अब इनको छोड़ देना चाहिए कि
it's not worthwhile to talk about it. जी, I think I जी जी सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुरकान भाई आप तो ऐसे सरप्राइज एक्ट कर रहे हैं इस निकाह वाले सीन पे जैसे पीएमएल नून की हिस्ट्री नहीं रही है हमेशा ही पर दूसरी राइवल पॉलिटिकल पार्टी की औरतों को टारगेट करने का they've always done it starting from बेनजीर उससे पहले भी खैर फातिमा जुनान के साथ तो लेकिन this is a thing in Pakistan honestly I'll be the devil's advocate here and I'll say that even इमरान खान ने भी किया है ठीक है सब लोगों को निकनेम्स देना लोगों के मरियम की जो वो थी क्या कहते हैं उसे शादी के बाद नाम ना लो कि सफदर जो है वो गुस्से हो जाए but anyway that's what Imran Khan said in his speech मरियम जनरली उसकी शादी के बारे में भी वो करते थे मतलब they used to give them nicknames so it's a very common thing that people do in Pakistan but you know what's surprising because I get into these fights with these people on Facebook what was surprising for me was कि जो फेमिनाजी लेवल की औरतें हैं जो हर लेवल पे ना औरतों की हक पे बहुत लड़ती हैं and everything all that they were okay with what was happening to Bushra. And let me tell you what was happening to Bushra. Imran Khan, he's a misogynist. We all know that. His robots comment and some other stuff he did. कुछ उसने वो एक rape के case में उसने कुछ block करवाया था voting. Anyway, Imran Khan, apni jagah pe, he's not a good example of someone who supports women rights. I think in that case, Bilawal is the best example. But all those women, most of them were supporting what was, they were like okay with it. They were like, oh, Imran Khan said this and that, so what's happening to her? So, they deserve it. Kind of, he deserves it, but they were intellectually saying that she deserves it because it was happening to her. Her menstrual cycle was being discussed on TV. केस हो रहा है ठीक है यार साइड पे केस करो कोई मसला नहीं टीवी एंकर्स ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं What kind of a disco Islamic state is this? There is a little bit of a difference. Iran and Saudi and Afghanistan, if this happens, रियासत मदीना बना रहा था तो अब ये बर्दाश्त करे. This is an Islamic law. But this, something so personal to a woman will never be discussed in Afghanistan, Iran, or Saudi. They'll be looking for the head of that talk show host. Ma'am, I would like to include this के first of all ये जो particular case है इसका previous सारी इन चीज़ों के अंदर से ना कुछ difference है. Secondly, it is not an Islamic law. Islamic law जो है it is very clearly written down and a lot of ulama, especially from outside of Pakistan, have given their comments that this is not how you judge an idda form. The ex-husband has no comment on it to begin with. The Islamic laws are very clear in this regard on both sides of the Islamic schism. जो पाकिस्तान की कोर्ट ने किया है, it has nothing to do with any Islamic law. और 7 साल की तो कोई सजा वैसे भी नहीं बनती. Secondly, मैं as an individual नहायत ही गिरा हुआ इंसान हो सकता हूँ. नवाज शरीफ एक बहुत गिरी हुई हरकत करता है कि एक फोटो जो है बेनजीर की वो फ्लायर्स के तौर पे जो है वो गिरा देता है. इमरान खान बहुत बुरी हरकत करता है कि मरियम नवाज को जो है उसकी शादी के ऊपर जो है जुगत लगा देता है. बाय द वे उसकी टीचर्स भी लगाती हैं उसकी स्कूल जो लोग मरियम नवाज के साथ उसके क्लास फेलोज रहे हैं they say the same thing. इमरान खान हैज बीन अ वेरी ओपन प्ले बॉय और ख्वाजा आसफ भी जो है वो भी कोई इतना नेको पारसा नहीं रहा. उसकी अपोजिंग साइड पे जो है वो लोग भी जो है दे आर नॉट कोई वो मौलवी टाइप लोग नहीं है. द डिफरेंस इज दिस पर्टिकुलर केस इज बीइंग डिस्कस्ड इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. उसने गाली दी कि कोई एक शख्स एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर एक पॉलिटिकल कैपेसिटी में किसी शख्स को बदनाम कर रहा है, उसके बारे में झूठ बोल रहा है, उसको गालियां दे रहा है. And then there is an institution that is discussing something that do not have the right to discuss. That they do But not. That's a whole Pakistani problem ना. किसी को कुछ बिगाड़ना है तो उनकी औरतों के साथ कुछ कर लो. किसी को बेइज्जत इंसल्ट करना है तो उनकी औरतों के साथ कुछ कर लो. ये एक बुराई है.
उसके बाद एक है चीज जो कि हमारी एज एन इंस्टीट्यूशन जुडिशरी को नलीफाई करती है, कि उसके ऊपर से हमारा ट्रस्ट उठ जाता है। और जिस वक्त लोगों का जुडिशरी से ट्रस्ट उठ जाता है, दैट इज अ वेरी You डेंजरस trusted the सिचुएशन। judiciary? Pardon? You have trust in the judiciary till now? I'm surprised. No, I did not, but some people do. देखें, इसमें एक और जो चीज़ है ना जो काफ़ी कंसर्निंग है। अब यहाँ पे अभी तक यही बात हो रही है कि दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट मैटर, जो कि नहीं, इस लेवल पे एटलीस्ट नई बात होनी। कोई पॉलिटिशियन ने जुगत मारनी है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो होता रहा है, पहले भी होता रहा है, अभी भी कोई कर रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आपका कोर्ट में ये चीज़ डिस्कस हुई, दैट्स एट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। मसला कहाँ पे आता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे, जिस तरह मर्जिया सेड, मिलियंस ऑफ किड्स आर आउट ऑफ स्कूल, मिलियंस ऑफ किड्स आर malnourished, million of people do not know where they are going to get their food next meal from. लोगों ने सुसाइड की है, अपने आप को मारा, अपने बच्चों को मारा, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर देम। यहाँ पे तो हम प्राइवेट मैटर में जा रहे हैं कोर्ट में कि इन दोनों की शादी लीगल है कि नहीं है, लेकिन जब बात आती है एसेट्स की, असासों की, आपके फाइज साहब जो हैं वो कहते हैं मेरी बीवी के एसेट्स हैं, मेरे से सवाल ना पूछो उसके। वहां पे तो आपने सेपरेट कर दिया। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि आपके ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट है कहाँ से आए, रीसेंट इंटरव्यू, कहते हैं उनसे पूछो, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, हमारा तो बंटवारा हो चुका था, तब से मुझे कोई आइडिया नहीं है। नवाज शरीफ से पूछो, मेरे बच्चों का है, मुझसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो नहीं पता। शहबाज शरीफ से बात हुई टीटी केस वाली, मेरे अकाउंट में तो नहीं है, मेरे बच्चों के अकाउंट में अगर आए तो उनसे पूछो। वहां पे यू आर मेकिंग दिस सेपरेट कि यार वो प्राइवेट मैटर हो गया ना, कि मेरे से रिलेटेड नहीं है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे दो लोगों के बीच में एक इंतहाई पर्सनल सी चीज को आप इतना बड़ा इशू बना के कि आप मेंस्ट्रुएशन जो है डिस्कस कर रहे हो एक बंदे के ऑफ अ पर्सन which is going to be broadcast on national and international media. इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता इस मुल्क में। Yeah, but can I give an unpopular opinion over here because you all are PTI fans, so I'll say it. बुशरा बीबी I जब am से not. आई है, इमरान खान के लिए मसले ही मसले क्रिएट हो रहे हैं। First, the Tosha Khan I thing. agree. I agree. All of the things it's related to her. देखिए, I will not blame her. I will blame इमरान खान on that. बुशदार को भी I लेके know. आया, ठीक है, बुशरा ने कराया, जो भी है, एंड में डिसीजन इज बीइंग मेड बाय इमरान खान। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से या उसने सारा के, श्योर शी माइट हैव हैड द इन्फ्लुएंस, जो भी है, ultimately he is the decision maker. He is an adult. You can judge him by his decisions. Knowing Gufran you bhai, have so I many want political to. rivals, you could have at least made your marriage a little more, थोड़ा सा clear cut Gufran बनाया bhai, होता। Gufran bhai, I wholeheartedly, on a very personal level, agree with what you're saying. But then again, uh, Oh dear Lord. पाकिस्तान में मर्दों की हालत बहुत बुरी हुई हुई है, या इनके अच्छा अच्छा हालात एक सेकंड पॉज देयर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं इसमें एक चीज कमेंट करूंगा, खान किसी से शादी कर ले, वेदर इट वाज जमाइमा, वो इधर से कोई पता नहीं कितने कीमती आर्किटेक्चरल आपके पुराने पता नहीं क्या लेके जा रही थी, उस पे केस बना दिया। वेदर इट वाज रेहान, उसने व्हाट हैपेंड एवरीवन नोज। थर्ड, बुशरा, वो चाहे किसी से शादी कर ले, हम पे किसी ने कोई केस नहीं बनाया फरहान भाई। हाँ, रेहान पे जो लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, द बैकलैश एंड द बुक I that mean, he came could have just stayed with Reham, right? She was pretty, she was well spoken. I mean, dude, what the hell? You never liked ओके, her. लौंडा कहने का फिसल गया मकसद था, ये पिघल गया था। बट लाइक कहने का मकसद यार वो बेसिकली हुआ ये था, कंटेनर ज्यादा देर बैठ गया था ये, और वो कुछ एक दो इंटरव्यू हो गए थे। ऑल्दो बैक देन हमीद गुल वाज अलाइव, और उसने इसे वार्न भी किया था, और उसने कहा भी था कि लाइक इसे भी कहा था रेहाम को कि स्टे अवे फ्रॉम आवर बॉय, ठीक है।
बॉय 60 साल का बॉय कह रहा था वो हमीद गुल एंड देन यू आर सेइंग इमरान खान इज अडल्ट, ही इज प्रोबेबली ओल्डर एडल्ट, जेरियाट्रिक He's like a कैटेगरी में man आता है। child. और every man is but No, yeah but he's like an uh, extraordinary man child. Like, why would you go on yeah a TV and say that men are not robots, women don't wear yeah enough clothes? बट Why? अभी अभी देखें, वो जेल में भी कह रहा है कि यार मुझे बड़ा मसला है, लाइक मुझे ना ये 16 kg के डंबल नहीं दे रहे, ही इज मोर वरीड अबाउट लाइक वो, एंड विच इज गुड आई थिंक के लाइक It's वो a वो जो burger. लोग उसके, हाँ ही इज अ बर्गर ठीक है, बट लाइक वो कह रहा है कि लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन स्लीप, जमीन पे सुला दो, कहीं सुला दो, मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा, खुश रहूंगा। ही 70, ठीक है। अभी लाइक मैं कुछ दिनों पहले लाइक उफरान पाकिस्तान से आया, आई वाज इल, तो वापस एक्सरसाइज पे लगा, 2 दिन एक्सरसाइज करूं तो उसके बाद लेट गया हूं। तो फिर मैंने इसका सुना, मैंने कहा यार ये 16 kg का डंबल मंगवा रहे हैं, मैं तो इधर छोटे मोटे उठा रहा हूँ, क्या यार कर क्या रहा हूं मैं। तो जी मर्जिया, यू हैड समथिंग टू से, मर्जिया। जी, ये जो इधर का डिस्कशन हो रहा है, मैं चाहूँगी कि बस इस पे मैं फाइनल कमेंट करूँ, उसके बाद मैं ज़रा जाना चाह रही हूँ, क्योंकि इट्स अ बिट लेट फॉर मी नाउ। सो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे कि आई कंप्लीटली फुल्ली एग्री विद गुफरान, डॉक्टर गुफरान, कि एक चीज़ होती है कि आपने जुगत कर दी, ऑल्दो ये भी नहीं करना चाहिए कि किसी रैली में खड़े होके आपने कोई कमेंट पास कर दिया, किसी शो में बैठ के आपने कोई बात कह दी। लेकिन ये जो लीगल जब आप कोर्ट में कोई इस पर्सनल इंतहाई पर्सनल नौयत का मामला लेकर आते हैं, तो उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही आई थिंक बहुत गिरी हुई हरकत थी। ये केस कभी भी कोर्ट्स में आना ही नहीं चाहिए था, एडमिट नहीं होना चाहिए था, और इस पे जो फैसला आया, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई, तो बहुत ही डिस्गस्टिंग बिट है ये पाकिस्तानी हिस्ट्री का, एंड देयर इज़ नो अदर वे फॉर मी टू पुट इट। दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा इमरान खान के मिसोजिनिस्ट कमेंट्स पे भी यहाँ पे तज़किरा हुआ, तो उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो कि मैं जनरली you know, this is a principle that I fully uphold, and I feel it is also representative of a pluralist society, and we should all strive towards that end. तो किसी भी तरह के ओपिनियन को आपको, अनलेस कि वो बहुत स्पेसिफिकली हेट स्पीच के ज़ुमरे में आता है, इन द सेंस कि वो किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के लिए वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करता है, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको उसको सेंसर करना है, और उसको अ, जो है वो सप्रेस करना पड़ेगा उस तरह की वॉइस को। लेकिन इन जनरल अगर लोगों के कोई ओपिनियंस हैं किसी भी हवाले से, वो मॉडेस्टी हो, या वो ख़वातीन के हुकूक हों, या वो मर्दों के हुकूक हों, फॉर दैट मैटर, तो लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। देखें, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये चीज़ होती है, और ये बात मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुई जब मैं पाकिस्तान से निकल के गई, क्योंकि पाकिस्तान में एक एक चीज़ होती है कि यू नो अबाउट some principles in theory, and it is another thing to live through those principles and to experience them in reality. तो मैं पाकिस्तान से जब बाहर गई, तो मुझे एक अपना बड़ा फॉर्मेटिव जर्मनी में एक्सपीरियंस याद है। मुझे गए हुए वहाँ 6-7 महीने ही हुए थे। तो एक मेरा क्लास फेलो था, मास्टर्स की मैं उस वक़्त स्टूडेंट थी, और वो एंटीफा का मेंबर था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना रेडिकल लेफ्ट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होगा। तो ही वाज़ एंटीफा जो है, ये एंटी फाशिस्ट ग्रुप्स हैं, ये पूरी दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न यूरोप और यूएसए में इनकी तादाद रिलेटिवली ज़्यादा है, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट विंग ग्रुप्स हैं, और ये इस हद तक एक्सट्रीम लेफ्ट विंग ग्रुप्स हैं, राइट विंग ग्रुप्स के साथ ये अक्सर क्लैशेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उस उन दिनों मुझे अच्छी तरह से याद है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे, और उसमें जर्मनी से 4 सीट्स जो हैं, वो आईएफटी ने ली थी उन इलेक्शंस में ना। तो मैंने ऐसे ही उससे छेड़ने के लिए मैंने उससे पूछा कि तुमने देखा यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, और आईएफटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अब यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएँगे, तो तुम लोग क्या करोगे? तो उसने मुझसे कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, और फिर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे इंस्टीट्यूशनली, ये करेंगे हम। तो देन आईएफटी और एंटीफा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी पोलर ऑपोज़िट जमातें हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के ओपिनियंस जो हैं वो सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं, वो हमेशा एग्ज़िस्ट करेंगे, इस तरह के पोल्स भी हमेशा एग्ज़िस्ट करेंगे। तो होना ये चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि लॉ से अबव हो, और लॉज़ भी इस तरह के ना हो जो कि किसी एक
ग्रुप को दूसरे पर फ़ेवर करें और किसी दूसरे के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी हो, ये होना चाहिए। बाकी ये कि आई मीन इफ यू सप्रेस और if you censor certain opinions and don't let them come into the public sphere, then I don't feel that this is a good way for a society to be politically and socially organized. Because log आपके डर से अपने preferences falsify कर लेंगे, but at the end of the day they will continue to believe in what they feel is the right thing. So अगर आपको किसी को persuade करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी बात जो है वो बाहर आ सके, या वो पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखने को सेफ समझ सकें without any reputational or any financial or any professional costs. So I think that we need to foster this kind of an environment in Pakistan without, labeling each other. ये तो ऐसा है और ये तो वैसा है और ये ऐसा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए. Anyway, on that note, I will take your leave. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज बात करके. मेरी थोड़ी-सी इस वक़्त फिज़िकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं लंबा बैठ सकूँ, सो नाउ आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड. बट या, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी एंगेजिंग एंड डिस्कशन. Thank you, Marzia. Thank you, Marzia. And Yeah. stay healthy and well. I'd just like to say one Thank you. thing. Thank you. Ke, Allah Hafiz. I agree with Yeah. everything that Marzia said. It's just that I'm not entirely certain if I would say ke head of state has freedom of speech, Mm-mm. because you're not speaking as just one person anymore. You're representing a nation. You're representing a country. तो उसमें I think that's where I would say कि maybe that's where freedom of speech does not entirely exist. Yeah, I want to add to Fran's point just this, that when a prime minister says that men are not robots, women wear less clothes, and it was rape related, this has a ripple effect. Then every other person will start victim blaming you. देखो इमरान खान ने भी तो बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है, तो मतलब तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे? So I think Especially with Imran Khan, because people follow him a lot. They exactly worship that person. तो उसमें it becomes even a bit more concerning कि a person like him who has such a following, वो अगर इस तरह की बात करे, तो that is concerning. So उसपे that's precisely why I'm saying कि I don't think कि freedom of speech should exist at Yeah. all stages. Okay, just one small comment. We have reached the 2 hour नहीं, mark. आप We'll बस go to the just a final. last comment इस पे थोड़ी सी. Just a Furkan, last like comment. I'll Just go to one last comment, Ji, please. Ji, I'll come to you. Like everyone would go to the last comments and no rebuttals. I would just say that Marzia would go first, and then if you can stay for 5 minutes after the closure, it would be good. Give the last comments, Marzia. Then I'll move to Gofran. Then other panelists. Please go ahead, Marzia. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इसमें आई डू एग्री with the point that as a statesman and as a prime minister of the country, he should have been more responsible and more aware of the consequences of his words. At the same time, I'm also a student of political science, तो हम इस तरह के claims के बारे में ना मैं बहुत cautious हूँ कि उसने एक statement दिया तो अब इसका ये ripple effect होगा या इसके consequences होंगे क्योंकि उसके supporters हैं और वो supporters सिर्फ वही चीज़ follow करते हैं जो leader कहता है. So it doesn't really work like that. I mean, we really need to have some strong scientific in order to make such comments, yeah, in order to make those arguments. Of course वो theoretically तो कुछ भी possible है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी के लोग एक शख्स को फॉलो करते हैं या एक शख्स को उसकी पॉलिटिक्स की वजह से पसंद करते हैं तो उन्होंने अपनी रैशनैलिटी सस्पेंड कर दिया है या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के काबिल नहीं रहे. तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसके बारे में
केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक कि उस कमेंट के बाद इमरान खान को पीटीआई के अंदर से भी बहुत बैकलैश मिला था। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स थे। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर सपोर्टर्स हैं तो वो लीडर की वजह से या वो कुछ भी जस्टिफाई करेंगे। इसी वजह से आप देखते हैं कि अगर इस तरह से होता तो किसी भी लीडर को फिर पॉलिटिकली अपने वोटर्स को या अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज़ करने की कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। बट politics is a constant, it's an ongoing process. So you cannot just reduce it to one event or an individual. और इसका बहुत बड़ा प्रोसेसुअल बड़ा कीनली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है. So I do agree that he should have been more responsible with his words, with his choice of words. But I also feel that assessments of the impact of these words may be a little exaggerated. So yeah. अच्छा, इसके साथ मैं बस अब निकलूंगी because I'm getting really tired. But yeah, good night and thank you to all of you. Allah Hafiz. Okay, thank Good you, night. Marziya. Allah Hafiz. Dr. Ufran, go ahead with your final statement, closing remarks, please. हाँ, तो इसमें कि the thing is कि I'm And just to let's get back to the topic of discussion, मुद्दे पे which is the हाँ elections. elections. Yes. इसमें the next few days are going to be very important because that's अभी एक तो पहले final decisions आने हैं, final results आने हैं. उसके बाद courts में cases जाने हैं. I think they are going to be like 30-40 हल्के जहाँ पे courts में जाएंगे ये. They have good proofs, good evidence के mismanagement हुई है, धांधली हुई है. जिस तरह मैंने भी एक मेंशन किया था फॉर्म 45 और 47 में डिस्क्रिपेंसी की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एविडेंसेस के दो नंबरी हुई हुई है एंड दोज आर नॉट गोइंग टू होल्ड इन कोर्ट के द इनिशियल रिजल्ट्स जो अभी के रिजल्ट्स हैं, इट्स वेरी लाइकली कि दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड इन कोर्ट. लेकिन वहां पे स्टोरी खत्म होती नहीं है क्योंकि ये तो बाद में होगा. ये दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम. डॉक्टर सलमान ने मेंशन किया था सलमान अकरम राजा का कि उन्होंने उनको आरोज ने इस तरह निकाला था. उसमें आगे डेवलपमेंट ये थी कि दैट केस वाज टेकन टू लाहौर हाई कोर्ट और उधर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट ने को उन्होंने कहा कि आरोज ने हमें निकाला था इस तरह भाई वो सारा. एंड इलेक्शन कमीशन सेट के कोर्ट को कि रिजल्ट आ गया तो इस केस को आप फारिग कर दें, जस्ट गेट रिड ऑफ द केस बिकॉज द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट. तो उसके बाद द कोर्ट सेट के आरओ को इधर लेके आए, हाजिर करें उधर उन्हें इधर. एंड इलेक्शन कमीशन टोल्ड देम कि आरओ से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, हमें नहीं पता आरओ हमारे कहाँ पे हैं. तो केस चलेंगे, प्रोलॉन्ग चलेंगे तो उनके डिसीजन में आने में भी टाइम होगा. सो व्हाट्स गोइंग टू बी पर्टिनेंट कि तब तक रिजल्ट्स आ तो चुके होंगे. इंडिपेंडेंट्स क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट्स अपना ग्रुप बनाते हैं, वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, टूट के जाएंगे, वो सारी चीजें होंगी. एंड दैट इज व्हाट्स गोइंग टू मेक और ब्रेक द एंटायर गेम. सो आई एम जस्ट I'll have my popcorn ready. I'll be watching and try to enjoy this as much as I can. Okay, thank you very much, Dr. Ufran. Dr. Salman, with the final remarks and comments, please go ahead. या मेरे ख्याल में मोरलेस जो गफरान ने मर्जिया ने कहा है वो सही है. बस एक मैं थोड़ी सी अनरिलेटेड चीज़ बात कर रहा हूँ. मतलब ये जो मिसोजिनी का हम लेबल वगैरह लगाते हैं ना, तो किसी भी इंसान पे ये लेबल लगाने के लिए उसके एक्शंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. मेरे ख्याल में इमरान खान का जो प्रॉब्लम है वो मिसोजिनी का प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो प्रॉब्लम है वो फुट एंड माउथ वाला प्रॉब्लम है. तो वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, जब डिस्कशन के अंदर एक तो उनको इंटेलेक्चुअल बनने का बहुत शौक है, तो वो इंटेलेक्चुअल जब इस तरह की चल रही होती है डिस्कोर्स सोसाइटी से रिलेटेड, तो उसके अंदर वो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स पास करते हैं. मेरे ख्याल में उनका जो एक्शंस हैं, उनका जो करियर है, चाहे वो स्पोर्ट्स करियर हो, चाहे वो पॉलिटिकल करियर हो, वो बिल्कुल इसको डिनाई करता है कि वो कोई मिसोजिनिस्ट है. क्योंकि जिस तरह से फीमेल लीडरशिप इस पार्टी ने
मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वो लेकर आई है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया है, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल शायद रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलती है। और इसी से मैं आता हूँ रिलेटेड इलेक्शंस पे कि जिस किस्म का मेटल फीमेल पॉलिटिशियंस ने शो किया है इस इलेक्शन में, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम और माय हार्ट गोज आउट फॉर देम। जरताज गुल वजीर, मतलब वो वहाँ पर पूरी रात बैठी रही है जब तक उसको फॉर्म 47 उन्होंने इशू करके नहीं दिया है, और किस किस्म की हाई हैंडेडनेस नहीं की गई। यास्मीन राशिद और जो नेम इट, कमल शोजब और बेशुमार लोग हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सलमान अकरम राजा की बेगम उनके साथ थी, उनकी एजेंट थी, वो पॉलिटिकल एजेंट थी, उनके साथ भी उन्होंने बदसलूकी की है। तो ये जो हाईलाइट है ना इस इलेक्शन की, वो ये प्रूव करती है पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो बैडस हैं, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोरल बूस्टिंग चीज़ है। और थोड़ा सा अगर आप इनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो रिस्पेक्ट दें जो ये डिज़र्व करती हैं, तो और जिस तरह से हमारी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की वर्क फोर्स से बाहर है, तो वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए तो मेरे ख्याल में दे कैन डू वंडर्स, और इससे पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। और इस इलेक्शन के ज़रिए हम ये कंक्लूजन्स जो हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के और उसके फ्यूचर के बारे में ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन हमारे बड़ों को अक्ल लेने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए। और अब जब कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया ना, सब कुछ करके देख लिया, अब थोड़ा सब्र कर जाएं, थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को होल्ड कर लें। आप जो एक प्रोसेस है उसको आप चलने दें, और चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो उस तरह से आके वो रिवेंज लेगा। आई थिंक ही इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन नाउ, और मतलब कंपैरेटिवली मेच्योर, एब्सोल्युटली मेच्योर तो मैं किसी के बारे में अपने बारे में क्लेम नहीं कर सकता मैं, लेकिन रिलेटिवली 5 साल के मुकाबले में ज़्यादा मेच्योर हुआ, अपने अपने लेसन लर्न किए हैं। तो उस तरह का एक जो इमेज क्रिएट किया ना बास हमारे पोलिटिकल पंडित्स ने कि वो विंडिक्टिव है, और वाकई मेरे ख्याल में वो जितने विंडिक्टिव पीएमएल वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वो। और बस मैं ये दरख्वास्त करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, कि प्लीज़ 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 होश के नाखुन लें, प्लीज़ कुछ कुछ सैनिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें, और लोगों का जो राइट है उनको वो एक्सरसाइज करने दें, लेट पीपल लिव। और इसमें आपकी भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है। वरना जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें हम, और एक स्लिपरी स्लोप है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, तो ये सबको ही तबाह कर देगा, आपको भी तबाह कर देगा, ये कुछ नहीं बचेगा फिर इसके अंदर। Thank you, Dr. Salman. I'll go next. I'll just make a comment कि जो खान की बात हुई कि ये खवातीन के लिहाज से इसने कुछ बातें की या कुछ जिससे मसले हुए थे इंटरनली भी उसे आए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज जब पॉलिटिक्स में रिलीजन मिक्स किया जाता है, इट्स अ वेरी डर्टली कॉम्बिनेशन आई वुड से। और वो अगर कोई इमेच्योर बंदा करे तो वो कभी कभी ऊपर नीचे बात कर देता है। तो वो रिलीजियसली लाइक हर किसी का प्रोसेस होता है, हर कोई डिफरेंट तरह से मूव करता है। ही इज एट अ स्टेज जहाँ पे ही उसकी कन्वर्जन हुई है। वी हैव सीन कि वो 30s 40s में किस तरह का एक शख्स था बिफोर ही गॉट मैरिड। तो उसकी एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस चीज पे, वो एक अलग चीज है। बट वो जो मिक्स होता है ना, उसमें वो कभी कभी ब्लंडर्स हो जाते हैं। I'll get back to the topic, and I would say what happened last night और जो आज भी हुआ, it's something जो कि एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है पाकिस्तानी अवाम ने कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई इंटरवेंशन करेगी तो वी आर देयर, वी वुड स्टैंड, वी वुड वोट, और इस चीज को यूज करते हुए हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। जो ये मई लास्ट ईयर की बात करते हैं, एक एक डेंजरस चीज है, बट मैं कह देता हूँ कि अगर लाइक पीटीआई से ऑर्केस्ट्रेट होती तो उसका मैग्नीट्यूड इतना ना होता जो वो था। जो इमोशन उस वक्त था
फिर अगर इस तरह की एक्सरसाइज करनी होती तो वो उससे एक डिफरेंट लेवल पे होता। तो उस चीज को जो हुआ, लाइक हिस्ट्री वुड, लाइक फ्यूचर वुड टेल प्रोबेबली, और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि वो क्या था। क्योंकि उस वक्त तो ZAB को जब ये हैक कर रहे थे, वो भी ठीक लग रहा था कोर्ट्स को, वो भी ठीक लग रहा था उस वक्त के टाइम के इंटेलेक्चुअल्स को, बट वो जुडिशियल मर्डर कैटेगराइज होता है अब। तो ये हिस्ट्री बताएगी कि मई में क्या हुआ था, खान के साथ क्या हुआ, इद्दत क्या था, और ये लिखा जाएगा। और जो लोगों ने किया, ये इद्दत वाला तो एक मेजर कर्नल के लेवल का केस है, इन्होंने बनाया होगा, मैं सीधा कहता हूं। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई थर्ड ग्रेड बंदे ने ये घटिया केस बनाया है, क्योंकि ये कोई सेंसिबल इंसान तो बना नहीं सकता। तोशा खाना, उसपे लाइक यस आई एग्री, खान साहब को वो चीज नहीं सूट करती, कि वो एक घड़ी या कोई गिफ्ट इस तरह का बेचें, क्योंकि वो इस चीज के अगेंस्ट खड़े रहे और हम भी उनके पीछे लाइक सुनते रहे उन्हें, और उसी वजह से हम उन्हीं के लाइक सपोर्टर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका राइट है, वो कर सकते हैं। अब उसमें अगर प्रोसीजरल एरर हुआ है, और वो दुबई में कहाँ से हुआ है, कॉन्सुलेट में क्या हुआ था, लाइक बहुत सी चीजें उसमें डाउटफुल हैं। ठीक है, बट लाइक दैट डजंट सूट खान। और आई वुड से कि जो अब आगे दिनों में होगा, इट वुड बी तोड़ जोड़, और उसमें आई थिंक द विनर वुड बी तीर। जरदारी इज वेरी गुड एट दैट। ए बी, आई थिंक जितनी उन्हें सीट्स मिली हैं नेशनल असेंबली में, जिस तरह उन्होंने सिंध में सीट्स ली हैं, दे आर द विनर्स इन दिस इलेक्शन। एंड आई थिंक एंड आई फोरसी कि बिलावल का बहुत ब्राइट फ्यूचर लग रहा है मुझे। पीटीआई का इस तरह का नहीं है, बट बिलावल का बहुत ज्यादा है। आई आई होप के लाइक जो भी गवर्नमेंट आए स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मेन इश्यूज हैं, एंड वी कैन डिस्कस दैट in the upcoming shows later. Sid, go ahead, and then Maham, please end the show. Thank you very much. Yeah, I was just going to bring the attention to what you have said, कि इस इलेक्शन में एक्चुअली में तो पीपीपी जीती है, बिकॉज जिसके साथ भी पीपल्स पार्टी होगी, दे आर द पीपल दैट आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, रिगार्डलेस इट बी पीटीआई और द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और वो कहा जाता है ना कि जब पॉलिटिशियंस की मौत आती है तो वो कराची की तरफ दौड़ते हैं, तो वहाँ पे पीपीपी जो सी है, वहाँ उन्होंने सीट्स जीत लिया। ओवरऑल सिंध के अंदर अच्छी खासी उन्होंने सीट्स जीत लिया। आई थिंक 46 सीट्स इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी हैं फॉर पीपल्स पार्टी। आई गेस इस इलेक्शन के अंदर उतना ज़्यादा जो सा पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ होगा, इवन बिकॉज ऑफ द टर्न आउट दैट रेवोल्यूशनरी टर्न आउट दैट हैपेंड, जितना पीपीपी को हो गया। दे केम बैक फ्रॉम द डेड इन अ वेरी पावरफुल सिचुएशन। तो मैं तो इस हवाले में ये कहूँगा कि इस करंट सिचुएशन के अंदर जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स जीते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉल्टर राइट नाउ। इस वक्त जितने आपके ऊपर पहले जुल्म हुए हैं उससे ज़्यादा होंगे, बट इफ़ यू आर somehow, and I'm nobody to ask for such sacrifice because I'm not sacrificing a damn thing, but if you are a little bit more steadfast for a little bit more time, you might be able to save this country. Might be, I mean, there's no guarantee about it, there never was. And once you're done with that, once you have gone through all the torture, which has not that much time left, and you will be tortured, you are definitely going to be tortured by the establishment, by the police state that you're living in, that you're fighting against. Try to be reasonable. मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन पीटीआई के लिए ये है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन कर ले, बिकॉज एमक्यूएम के 12 सीटों से आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। चूज लेसर ऑफ द टू इवल्स,
in this particular situation. I think People's Party has become a little bit better than what it used to be. इस वक्त बिलावल भुट्टो ने ये बता दिया कि अब वो जरदारी की नहीं, वो बिलावल की पीपल्स पार्टी है. And people have given, uh, Bilawal has shown some merit in his serving as a minister and his conduct in the election campaigns. बिल्कुल unreasonable नहीं है वो. I think PTI should try to form some sort of a coalition with them. Maybe with a little bit of sacrifice like that, we might be able to bring a better trajectory to our country, where somewhat the people will be heard, somewhat our choices will be considered. Maybe we will break the shackles which our own protectors have put upon us. A little bit of more sacrifice, and maybe we might work it out. Yes, Sultan bhai. Ji, thank you, Sid. Maham, Yeah, I've been thinking for all this time कि मैं अपने final statements क्या करूं. मुझे तो with all honesty, I don't know, man. Pakistan have gone to the dogs. There is no helping it. There is no saving it. अब जो results आए हैं उसको accept कर लो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं हो सकता. Nobody is going to help this country. That's about it. We're like, Pakistan is like that problematic child in a family जो हर किसी के साथ पंगा करता है, लेकिन फिर जब उसको कोई बोल दे तो वो रोता भी है कि मेरे साथ तो ज्यादती हो गई. Just like we have made pangas with all of our neighbors around us. Everyone hates us. ठीक है, around the world we have a really bad image. And let's just be honest, it's not just Nawaz Sharif or army or establishment. हमारे जो local लोग हैं ना, वो भी ऐसे कोई ठीक है नहीं कि मैं कहूँ कि बड़े पाकिस्तानी बड़े ठीक ठाक लोग हैं. देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट में कौन है? आसिम मुनीर बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, he's one of us. Fauj is one of us. Nawaz Sharif is one of us. His supporters are one of us. It's all us. It's like us against us. So I don't know, man. I think the problem with our country is, and let's just be honest, वो नहीं है सच. मतलब I look at myself. I mean, I'll be talking about how unfairly everyone is being treated, और ये गलत हो रहा है, ये बड़ा बुरा हो रहा है, and all that. But then I'll just sit back and do my thing, watch my movies, and go shopping or stuff like that, because that's just who we are. And that's what most of the people in Pakistan are. I mean, जब दूसरी पार्टी के साथ हो रही होती है तो दूसरी पार्टी बैठ के देख रही होती है कि ओ हो ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, मीम्स बन रहे होते हैं, एवरीथिंग. जब दूसरी के साथ हो रही होती तो वो कहते हैं ओ हो बड़ा अच्छा हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं उस पे भी. तो we're actually the Islamic Republic of memes. We'll make memes about situations, and even the PTI के लोग खुद जो है सारे situation पे memes बना रहे हैं. So yeah, I guess that's about it, and that's my final statement. मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है. I'm just so hopeless and disappointed at this point. Anyway, thank you for listening to us, right? And subscribe to the channel so that you can listen to us some more, and press the bell button so that you get notification, so that you can listen to us again, so that we discuss about different topics. We discuss politics, religion, science fiction, movies. We cover all kind of topics, and we're gonna go. Thank you. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. Allah Hafiz and goodbye.